First and foremost, this session is just to make you aware of that product management. Actually, some people will be removed from the due to technical problems. Starting. Anyways, ठीक है. हाँ. So the way I kind of want to speak about this is that the first thing that you need to be aware is what you are getting into, right? कि product management करना ही क्यों है जीवन में, right? आप सबने कुछ कहीं ना कहीं, you have at some level heard about this role, what this role means, right? But I think at a deeper level, it means how to think, generally how to make better decisions in life. So what I've done, at least this is the agenda, was that I want you to understand that when you think of joining any cohort, right, what should be your ideal thought structure, and the people who have gone through it, what was their experience, and I want you to hear from their mouths, right? I think the team has been kind enough. There are students from the cohort who have come from various backgrounds, and what I essentially want you to take away from this is that what was their experience, what did they think about product management, what got changed, right? And the way I want to kind of structure this conversation is like this: कि पहले 5 minutes तक we will just explain about what the cohort is, what happens, right? I think post that I will leave it to the people who are, हम हर एक को spotlight में लाने लगेंगे, और everybody will speak, a participant of the cohort, for 2-3 minutes about their experience, what they understood, and then one person can raise hand. I will not allow anybody to speak directly. You have to raise your hand, and I will allow that one person to ask a direct question to that person. We will do like 6, 7, 8 people from different backgrounds so that you have an understanding of it, and then towards the end of it, for the final 30 minutes, we will typically do a Q&A. ठीक है? Make sense? I think structure सबको clear है, तो please एक बार अपने इसमें हम thumbs up करके या reaction दिखा दो if you understood the structure what I've spoken about. Make sense? ठीक है. Awesome यार. So Subhashish, I would just introduce Subhashish and Suraj, who were mentors at my cohort, who personally are product managers. So Subhashish, why don't you take over and essentially give the initial introduction, and maybe Suraj can skip in at some point. ठीक है? चलो. Sure, Subhashish, sure, yeah. First of all, thank you everyone. Hi, hello everyone. This is Subhashish. I have overall of 8.5 years of experience. So currently I'm working as a senior PM at ADP. So let's start. ठीक है, start करते हैं. So let's deep dive into the today's session. So it's into our product journey. So this is the introduction of our beloved Saran bhaiya, and you have heard from him. So he has worked over like past 10 years. भैया आप अपने बारे में थोड़ा सा बोल दोगे कहाँ से, like your experience and all? Sure. So let me do that. There isn't much to know about me, to be very honest, but yet I will tell you. See, I have been a person who has been enormously a very bad builder in life, right? Always breaking things, right? But the good thing was that whenever I broke things, right, I learned something out of it, right? That's the feedback loop that was always there. So in some capacity, I was a product manager even before I was a product manager, right? So over the last 10 years, I have been very fortunate to work across very good brands with very senior people, very seasoned people who have built large products, and they have large systems understanding of how system thinking work, how do you take complex decisions, which was like companies like Flipkart. Then I worked for Blackbuck. Then I essentially worked for the Times Group. Then I worked for Edureka as leading one of their major verticals, from scaling it from 50 crores to 150 crores and things like that. And then in the most recent role, I kind of led the complete product strategy of a Series A funded startup which is currently doing around $10-12 million of revenue yearly, right? तो इतना किया, और पिछले 2-3 सालों से मैं एक एजुकेटर हूँ. मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और the emphasis that I keep is always not on learning content but context, right? That is way more important, right? और कहीं ना कहीं framework से बहुत ज़्यादा important है how you think in life. And if your mindset changes, I think you are set for like the next step that you want to take in your life. And most people are great at mindset only, right? So that is just about me. So Ashish, please take over. Yeah. Sure. Okay. Thanks. Thank you, Bhaiya. Okay. So going ahead, now the question is like, who is this cohort for? ये cohort किन के लिए है? So basically, this cohort is open for everyone. If you are from a BTech background or any graduate, you just recently passed out from any of the colleges, tier 1, tier 2, tier 3, it is for you. If you are a founder, if you are an entrepreneur, if you are an aspiring PM, it is for you. If you are someone who is working in an IT company, having like more than 10 to 12 years of experience into varied field like QA manager, business analyst, developer, architect, it is for you. And basically it is for open to everyone who can able to think.
And as Saran Bhai also mentioned, product management is not about the framework or skill set, but it is all about the mindset. Here, you have to build the mindset, you have to develop the mindset of the product management. Okay, so let's move forward. And how does this cohort works? Okay, so this cohort works is basically weekly sessions we will have in our weekend sessions, Saturdays and Sundays, we'll have sessions led by Saran Bhai. And then we have mentor led sessions which will happen on like on the weekdays, where you will give where you will be having given the case studies and you have to solve those case studies, and the case studies will be very interesting. And every week there will be different thought process, different domain. Maybe it will be on the healthcare domain, maybe it will be on automobile, healthcare, transportation, then media tech, so different background. And then obviously apart from that, we do have the fun session where Shravan Bhaiya will be providing us like all the different thought process on different fun sessions. We'll have fun activity and all. So again, like our I peers just will be want to telling add you. one point here, Subhashish. I think Yeah. to define the fun sessions, so what we have essentially thought about the cohort is that since it's about thinking in general, right? So we have also talked about deeper sessions, which are like which invoke your thinking process, like what is systems thinking, what is ethics, right? What is wealth? What is fame? How do you think about it, right? How do you make rational choices, right? And the timing of the sessions typically, Rohit, is हम इसके बारे में बात करेंगे, but still it is 3.5-4 hours every Saturday को हम थ्योरी करते हैं और संडे को हम 12:30 से 3:30 बजे तक हम IST timings, this is IST timings, right? We do a case study, live case study in front of the entire cohort, we solve it together, right? Which is like the very good supplement, because kahin na kahin it's the practice which makes you think better in ambiguous situations. So fun sessions are typically on deeper topics, system thinking, ethics, worldview, इंट्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट. और ये एक एक 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं जहां पे हम एम्बिगुअस टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मेक सेंस, ऑसम. सुभाशीष, गो फॉर इट. Yeah. Okay. Thank you, Priya. Okay. So this is about me and my co-host Suraj. So actually, I have mentioned myself, like I have working in ADP with all of these domains. I have worked for healthcare, payroll, shipping, logistics, and other domains. Suraj, introduce Kar. Sure. Hey guys, it's me Suraj here who's co-hosting with Shortlisting. I've been a mentor with the past cohort, and I have about four and a half ish experience of working in multiple domains, like and across multiple companies like UMAP, Chorus, and I've also mentored 40 plus people in this cohort, beyond this cohort as well. So lucky to be a part of this. Looking forward to mentoring some amazing folks like you. Yeah, thanks, Suraj. Moving ahead, and now the thing is that why this session for, and who is this session for, and what you will get from this session. So basically, you will understand. Like I understand that you guys mentioned, like you want to know how your development or your thought process will get changed. So people over here, they will share their experiences, and then they will say that they are from different backgrounds. Somebody is from someone is a doctor, someone is a apart from like different backgrounds, marketing, sales, and different background, how their thought process has changed to a product management role, and then you will understand that. Okay, and then it's completely transparent, guys. They are here. So let's start. So first is Namrata. Hey, hi Namrata, can you introduce yourself? Before we start, Namrata, I think there are two hands raised. I think Yeah. Anchal had raised the hand and Pawan has raised the hand. Pawan, do you have any question? Yeah, Anchal, do you have a question? Yeah. Hello. Hey, hi, Shravan. Yeah. Typically, since I joined from Link, right? So typically, my question is, since I am just right now currently working as an AI strategy consultant, so it's a kind of techno-functional role, and I would really like to know, since I'm very new to product management, but the kind of very inclined towards the things are happening right now in the world, right? So how it's going to help me out is what I'm curious to know about. So Anchal, same thing. Let's go through the next 35 odd minutes and post that if the questions, whatever questions you have. If I have to take some, I will take some. If other people can answer, let other people also answer. I hope that's okay. Yeah, sure. Awesome. Great. Awesome. Okay, Namrata, please, over to you. I would definitely want you to, can we bring Namrata in the spotlight? Would that be okay? One second, where is Namrata? Namrata, can you show your face? Would it be okay for you? Yes, I think my camera is on. Yeah, it's on. It's on now. Is it? Let me just pin you across also. Yeah, is everybody able to see Namrata? Guys, can you just raise your thumbs and yeah. So Namrata, it would be great you give your background and then you can speak about whatever you Okay. want to kind of speak about.
Sure. Okay, so hello everyone. My name is Dr. Namrata, and if I talk about my background, I'm basically an MBBS doctor. I've also done MD in clinical biochemistry, and so basically I have experience in the diagnostic industry. So actually, I was interested in health tech, digital health, and all. So that's through that I came to know about there's something called product management, and then I started following Shravan on LinkedIn, and वहाँ से I joined his WhatsApp community, and वहाँ से फिर my interaction with the community just started. So basically मतलब आई एम बेसिकली वेरी अनरिलेटेड टू दिस फील्ड. मतलब मेरा तो टेक बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी नहीं है. एंड सो इनिशियली आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि whether this is like this course is for me or not, or whether this will value to me or not. But the why I joined it was that कि जो community थी, the WhatsApp community that I was part of, उसकी वाइब ही इतनी आई वुड से इतनी अच्छी थी, बिकॉज लाइक उसमें वट एवर पोस्ट आई वुड लाइक श्रवण डेकॉन्स एंड ऑल देते हैं उसमें, तो जो भी मैं डालती थी उसमें ही वुड गिव हिज पर्सनल मतलब कमेंट्स कि आप ऐसे करो ऐसे करो. तो उसमें बहुत अच्छी एक मुझे वाइब लगती थी. सो आई वाज लाइक कि ठीक है ज्वाइन करते हैं एंड लेट्स सी. आई बेसिकली केम विद एन वेरी ओपन माइंड विद मेनी एक्सपेक्टेशंस. तो so if I have to summarize कि मेरा experience कैसा था, so talking about the lectures first. So lecture जो हैं like they are not like the typical lecture वाले lecture कि कहने को it's theory lecture कि जिसमें some topic will be discussed, and it's not like your conventional lectures कि some person is coming और वो 2 घंटा बोल रहे हैं and आप सुन रहे हो. ऐसा कभी भी नहीं था. All the lectures are very very interactive. We were always doing some activity during those lectures, and उसमें breakout rooms में we were always solving some cases. So very very interactive and not at all boring. मतलब हमारा जो session it was actually planned from 12 to 2, and वो कभी भी नहीं हुआ कि 2 बजे खत्म हो गया हो, because it was always I extended. don't know if that's a good thing or a bad thing, Namrata. But yeah, go for it. तो Go for it. बेसिकली वो मतलब इट वाज ऑलवेज एक्सटेंडेड, एंड फिर भी हमें लगता था कि खत्म ना हो, मतलब और चले और चले. बिकॉज इतना ज्यादा मतलब हमें उसमें वैल्यू दिखता था, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग. तो दिस वाज वन थिंग अबाउट द लेक्चर्स. एंड प्लस इफ आई टॉक अबाउट द केस स्टडीज वर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. जैसे कि मेरा तो हेल्थ का था, तो मेरा मोर इंटरेस्ट वाज हेल्थ टेक, बट there was so many case studies from different backgrounds like edtech or transportation and all. तो basically मेरा तो एकदम जैसे हुआ कि जैसे दिमाग खुल गया. लाइक जो चीजें मैंने कभी एक्सप्लोर भी नहीं करी थी, मुझे इतना पता भी नहीं था. तो बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं कि वे ऑफ थिंकिंग जो है वो एक्सपैंड हो गया. एंड बिकॉज मेरा जो ग्रुप था उसमें भी बहुत ही वेरिड टाइप के पार्टिसिपेंट्स थे. तो सबका एक अलग लाइक वे ऑफ थिंकिंग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, तो सब अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज जैसे कि मतलब इट्स नॉट लाइक एक तरह से आप सोच रहे हो, बहुत तरह से आप सोचते हो और फिर उसको एसिमुलेट करते हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग. प्लस माई मेंटोर ही वॉज वेरी वेरी मतलब ऐसे मेंटोर तो मैंने तो किसी भी कोर्स में नहीं देखे. वाज ऑलवेज देयर. मतलब अगर मैं उनको रात को 2 बजे भी अगर इफ आई विल पिंग हिम ही विल रिस्पॉन्ड. ही इज लाइक दैट. तो एंड इन श्रवण के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे उनका ये समझ नहीं आता कि वो इतना ज्यादा पर्सनल अटेंशन कैसे दे देते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को. बिकॉज वी हैड अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एंड he knows everything about everyone. मतलब कि वो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, क्या कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ पे उसका वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. सो ये बहुत ही रेयर है. मतलब आई माई सेल्फ आई एम इनटू टीचिंग, तो मुझे तो अपने स्टूडेंट्स के नाम भी याद नहीं होते, बट ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग. तो ये बहुत ही यूनिक बात है और मैंने बहुत कम देखी है. मतलब इट्स वेरी रेयर. So this is about the learning, and yeah,
तो बेसिकली कहने का मेरा जो मेन मैसेज वो ये है कि अगर कोई बहुत ही अलग बैकग्राउंड से है जिनका बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लाइक इज दिस फील्ड फॉर मी और कैन आई गेट इनटू दिस और नॉट। तो आई एम द परफेक्ट एग्जांपल कि अगर आप बहुत ही अनरिलेटेड फील्ड से भी हो तो इफ यू पुट इन द एफर्ट्स एंड बिकॉज इफ यू आर विलिंग तो यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हैंड होल्डिंग करके या आपको खींच के वो मतलब दे विल टेक यू टू द राइट प्लेस। बट ऑब्वियसली एफर्ट आपको भी देना है बट दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मतलब बी इट योर टीममेट्स और योर मेंटर्स और इवन श्रवण। तो मतलब ये थॉट आप निकाल दो कि मेरा बैकग्राउंड ये है वो है व्हाटएवर है तो आई कैन डू इट और नॉट। नो, आई थिंक मतलब यहाँ पे कम्युनिटी में वाइब ऐसी है कि एक दूसरे को पुश करना है, मतलब अकेले नहीं आगे जाना, सबको एक साथ आगे जाना है। जैसे हम बह रहे हैं एक नाव में बैठे हैं तो सभी चलेंगे, सभी उसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं जो नाव चलाना, मतलब वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी, इट्स लाइक दैट। तो ये जो बहुत ही यूनिक है। मैंने एक्चुअली किसी भी ग्रुप में जो भी अगर मैंने कुछ कोई भी कोर्सेज करें मैंने ये नहीं देखा कि सब लोग एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। तो बस दिस आई थिंक द हाईलाइट और द बेस्ट थिंग अबाउट joining this course was the intent or the vibe of this community। मतलब आप करियर में आगे कुछ भी करो दैट इज वो तो थोड़ा मतलब आपके एफर्ट पे भी डिपेंड करता है और थोड़ा लक फैक्टर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मतलब जो वाइब है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है एंड दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। सो फॉर मी दैट वाज द की। या ऑसम नम्रता, ऑसम, बहुत अच्छे। आई एम सो ग्रेटफुल यार, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत अच्छी बात है नम्रता। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? जनता आप सवाल पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज डालो। लास्ट में हम Q&A ही करेंगे, लास्ट 30 मिनट्स। लेट्स मूव टू आशु। आशु, would you be please come on the screen? एंड आशु एक बार मैं आपको ना लेट मी जस्ट एक बार मैं नम्रता को एक सेकंड मैं आशु को वापस पिन कर देता हूँ, एक सेकंड। या आई डिड। हाँ, ऑसम यार, ऑसम आशु। यस, ठीक है, स्टार्ट करूं। हेलो जनता, Yes. गुड इवनिंग। तो आई एम आशु मिश्रा। आई हैव समवेयर अराउंड 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें से 4 years मेरा प्रोडक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आई जॉइंड दिस कोहॉर्ट परहैप्स, कि मेरी जो थिंकिंग थी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर से वाज वेरी डोमेन स्पेसिफिक एंड थोड़ी नैरो हो चुकी थी, इसलिए आई जॉइंड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड माय नॉलेज एंड एक्सपैंड माय होराइजन इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। तो 3 things हैपेंड टू मी इन लास्ट 7 weeks ड्यू टू विच आई चेंज, एंड मैं कैसे चेंज हुआ उसके बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले तो श्रवण भैया के जो लेक्चर थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए बहुत ही अच्छे थे, बहुत ज्यादा घुस घुस के पढ़ाए, घोट दिया हमारे अंदर, ठीक है। तो एक को कंसेप्चुअल नॉलेज हो गई। दूसरी गेस्ट लेक्चर भानु के साथ हमारे गेस्ट लेक्चर हुए, हु इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, कमालिका हु इज अ 2-time लिंक्डइन वॉइस, और स्टीफन गूगल से थे, तो और दिलीप थे हु इज अ ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर। तो जब इनसे इंटरेक्ट करते हैं ना, तो जो नम्रता ने बोला वाइब, तो वो वाइब समझ में आती है और चीजें समझ में आती है कि यार कोई ऐसा भी नहीं है, मतलब 2 चीजें चाहिए, ज्ञान और माइंडसेट, जिससे आप भी कर लोगे, आप भी शायद वहां पे बैठ जाओगे। तीसरा है पीयर टू पीयर लर्निंग। तो डेली डिस्पाइट आवर जॉब्स, तो हम सबकी जॉब थी, मेरे ग्रुप में हम डेली केस स्टडी कर रहे थे, 4-5 घंटे निकालते थे और केस स्टडी करते थे, और उससे हमारी मतलब थिंकिंग बिल्कुल ही चेंज हो चुकी, ठीक है। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, तो बी रेडी टू स्लॉग फॉर द रेस्ट 7 weeks ऑफ योर लाइफ। बट क्या चेंज होगा? जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, मतलब सोचने में आ जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ना, देयर आर 2 things which are very inherent to you and which will help you in long term, which is आपका compassion और gratitude, जो जो बोलते हैं करुणा और कृतज्ञता जिसको बोलते हैं, तो वो आपके अंदर आ जाएगी। एंड मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ी चीज है। और श्रवण भैया, आपको थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सब लोगों को। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। किसी को जनता, does anybody have a question to Ashu? Since Ashu has finished in time, you can raise your hands. I again tell everybody to raise their hand and then I will allow the person to speak. Anybody has a question till now, or we can move forward? Hello? ठीक है, yeah Sanju, go for it. Yes. या आशु, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे।
So हाँ संजू। as you mentioned कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट से थे, so आप ये सीखने को आए और आप ये बोल रहे थे कि आप डोमेन स्पेसिफिक थे तो आपको चेंज करना था. So मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको कभी ऐसा लगा कि अरे ये तो मैंने पहले से किया है, मैं वापस क्यों करूं? मतलब it comes in your mind, right, when you've been into this field and some topics comes up. So how you, I mean, आपको ऐसा लगा कि आपको ये नहीं, अभी मैं ये इग्नोर कर लेता हूँ, या मैं कैसे, वो सिचुएशन आपने कैसा डील किया? मींस how was it interesting for you, like even if you knowing it and still learning about it? एक होता है ना लोगों में कि यार मुझे वापस वापस क्यों पढ़ना है, वो एक इंटरेस्ट कैसा आपने, मतलब कैसा लगा आपको उस बारे में? समझ गया संजू। तो संजू जो पढ़ाई वाली बात है ना, तो वो ऑलरेडी जैसे डिजाइन थिंकिंग में हो गया, ठीक है। डिजाइन थिंकिंग मैंने अपने एमबीए में करा हुआ था, लेकिन अब मैंने जब जॉब की एज ए प्रोडक्ट मैनेजर का डेजिग्नेशन लिया और उसको चीज को रिवाइज करके फिर इम्प्लीमेंट किया केस स्टडी और जॉब में, तब मुझे पता चला प्रैक्टिकल इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे उसको मैं बेटर कर सकता हूँ। तो वो रिवीजन जो है ना, वो रिवीजन इंटरनलाइज करने वाली बात हो जाती है। मैं और एक इतना एक बात, मैं संजू बस एक ही बात करना चाहूंगा, मैं सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कंटेंट अलग नहीं होता, कंटेंट सेम होता है। अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत है, मैं इतना कंटेंट दे चुका हूँ। कंटेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप किस चीज पे सोच रहे हो। क्या आप, इफ आई टेल यू अबाउट डिजाइन थिंकिंग, आर यू एबल टू अप्लाई दैट इन रियल लाइफ ऑन समथिंग दैट यू हैव टू डू? दैट इज वेयर यू बिल्ड डेप्थ ऑफ थॉट और माइंडसेट, राइट? ऐसा कभी नहीं होगा कि इफ यू विल फील दैट आई कैन नॉट राइट एनी अदर थ्योरी, थ्योरी की बात है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे थ्योरी से कहीं ज्यादा बात है कि अगर मैं आपके सामने एक रैंडम सवाल थ्रो कर दूं और आप बोलो मुझे, आप मैं डिजाइन थिंकिंग यहाँ पे अप्लाई करके डिजाइन कैसे कर दूं प्रोडक्ट, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज, ठीक है। ओके, आई विल मूव टू द नेक्स्ट पर्सन नाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। श्रेया, please, over to you. Yes. Yeah. Hi, everyone. I'm Shreya, currently working as an independent consultant, and I have overall of 11 years of experience, 8 years in research and analytics, and then the next few years in product management. So how I started my journey was I was already a senior product manager in AI, and I had left, and I was working with HP, and I had as a delivery lead, and I had left my job. Then I had left my job thinking, I'll start working as a product consultant. वो तो कर लिया, बहुत इम्पल्स में डिसीजन ले लिया, एंड देन आई गॉट, एंड देन आई इट स्टार्टेड, यू नो, मेरे को डर लगने लगा कि हाउ विल आई मूव फॉरवर्ड, बिकॉज व्हेन आई बिकेम अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, इट वाज नॉट दैट आई वाज हायर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, आई वाज प्रमोटेड टू दैट पोजीशन ऑफ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, एंड देन इट स्टार्टेड, यू नो, प्लेइंग विद माय माइंड कि हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई डू इट, एंड आई एम नाउ गेटिंग इनटू कंसल्टिंग एटसेट्रा. मेरा डोमेन इज वेरी लिमिटेड टू सर्च स्पेस और द एआई स्पेस एटसेट्रा. I joined the community. I met with Shravan. Found him on LinkedIn, joined his community, and from the community, thought process started changing. My interaction was with Shravan through the community, WhatsApp community. Thought process started changing because Shravan kept saying, "आप decons करो, आप decons करो, आपको करना पड़ेगा." And he took my promise, he करो, and you do it. And I promised him I'll do it. And within a few decons, like, you know, he gave personalized, as previous Namrata said, right? He gave personalized attention ki kaise move kar raha hai, etc. He would understand where I'm coming from, what is my mindset, where life, kaun se life stage pe hai, etc. And then and give personalized recommendations. And obviously I would build on it further. Then the cohort started. Fortunately, I was taken in the cohort. So the 7-week cohort, weekend classes tha. They were intense, they were insightful, and they were a delight. It gives you intellectual stimulation जो आपको किसी और, मतलब I've taken a lot of online classes upskilling के लिए, बहुत सारे in office, outside office, paid. I've spent 3 lakhs also, but as an intellectual stimulation with so much of gratitude and humble background, right? The mentors who are there, they are so down to earth, and the kind of thinking that they have and the kind of approach they bring in your thought process, मेरे को ऐसा नहीं मिला है. Like in my 11 years of career, hardly 1 or 2 people I must have met जो ऐसे background के साथ आते हैं, and you know, they are dedicated and devoted to you. उनको कोई मतलब नहीं है, but I think they're just nice people, and we've become a group of people who just resonate with the same value system. And so
that is one of the main life changer, game changer. In terms of content, Shravan has mentioned context is important. He breaks it in simplest terms, right? With 11 years of experience, मेरे को बहुत fear था कि I don't understand some things, system thinking इतने अच्छे से नहीं आता है and all that. But he broke it down in the simplest of terms with so many examples, with so many case studies as a group and case studies that was discussed कि कैसे approach करना चाहिए. And these case studies as a group that we did, वो ऐसे नहीं थे कि एक आदमी रात फ्राइडे को बैठो सैटरडे को बन जाएगा, ऐसे नहीं है. You have to spend time, you have to understand different concepts, theories, market research करो, other companies क्या कर रही हैं, and all of that, right? And then go in depth and then work on it. It starts from, मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पूरा जर्नी आप एक केस स्टडी में कर लोगे, फ्रॉम यूजर पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन टू यूजर जर्नी टू solution space to design, wireframes, prototypes, presentation, PRD, features, MVP features क्या होना चाहिए, metrics क्या होना चाहिए, everything. So that way it has been a delight. And मतलब आप interviews के लिए क्या prepare करोगे वो आप कर लिया आपने इसमें. So I mean I'm very grateful to God that I got a chance to meet Shravan and to Shravan for having this cohort. And I met like-minded people in my group, and also like the mentors have been amazing. वो हमेशा available है. I don't know how, and I don't know how Shravan is always available. But yeah, it's Awesome. been a wonderful journey. Awesome. Janta, one question to Shreya. Anybody who wants to raise hand, I would take one question and then we'll move forward. Anybody? यार आप सबको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, सवाल तो होने चाहिए. I have joined a cohort already, and I have learned all the concepts. Sure. So what would be additional thing that I will get in this course? यार वही, I think the simple answer to that question, I think Shreya ही बता देगी. Shreya, would you want to answer that? Yeah, so content आपके पास सारा होगा. Context is important, right? So I don't know if you can use that content across industry according to different types of problems that are there. And at the same time, the kind of people you interact with, वो आपका mind बहुत खुलेगा, दिमाग खुलेगा, बहुत. It's not कि PRD बनाना है तो उसमें ये what, why, how करना है. It's just not about कि क्या theory apply करना है, but a wider aspect कि क्यों करना है, कैसे करना है, and asking the right questions, and even asking the stupidest of questions, but asking questions to seek answers. ये change कहीं नहीं मिलेगा. Makes sense. ठीक है. नहीं मोहन, one question only. Kshitij, Kshitij, one thing that I would want to say. सिंपल बात है यार, देखो कंटेंट सेम होता है. आपको लगता है कि अगर आपकी थिंकिंग ग्रो हो रही है, जिस भी कोहॉर्ट को आपने ज्वाइन किया है, बी माय गेस्ट, वहीं पे जस्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है. आप वहीं पे जस्टिस कर लो. अगर आप सीख सकते हो बहुत अच्छी बात है, मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग. आई वुड नॉट वांट यू टू स्पेंड इवन 1 rupee more if you feel you are getting justified education from there and you feel that you will be comfortable in ambiguous situation or in comfortable product situation. If that is the case, अच्छी बात है. आपको ये, आप यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे. बट अगर आपको वो नहीं लगता, which is predominantly the case with most students, it's not about making a portfolio, it's about how deep the portfolio is. It took me 10 years to make my portfolio. You cannot make a portfolio in 7 weeks, right? Because it creates depth. अगर आपको वैसा लगता है कि आपकी डेप्थ है तो अच्छी बात है, तो आपको मतलब आगे जाना चाहिए और उस कोहॉर्ट को अच्छे से करना चाहिए. अगर आपको लगता है डेप्थ नहीं है तो आपको सोचना चाहिए. बस इतनी सी बात है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई थिंक जनता, लेट्स व्हाट, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? या हे सूर्या, या गो फॉर इट सूर्या प्लीज. Hi everyone, this is Surya. I am working as a software developer at Quant System. Coming to our cohort-based learning, it is a very interactive session that is organized by Shravan, and our mentors were very cool, and Subhashish and Suraj were always with us, supporting us, and the case studies which we used to get on the weekends are amazing, and they if we consider, they are from different domains, that is health, edtech, transportation, etc. And we have our fun sessions which were like
apart from the course, we used to learn many things. That is abundance mindset, how to develop it, how to be generous with the other people, and how to take good decisions in the life. And we used to have the guest sessions. We had to meet. We were given an opportunity in the guest sessions to raise our questions related to life situations and good decision making situations. Like we had one of the guests like Arpit Bayani, that is staff who worked as a staff product manager at Google, and Dilip sir, who worked as group product manager at Adobe. Those sessions were perfectly all right, and in those sessions we have learned many things: how a leader should behave and how we should develop our thinking, not only to the product, apart from the product also how our systems work. And at the end, I want to say background does not depend for joining into this cohort. Only what depends is content and our thoughts. Makes sense, yeah. Makes sense, Surya. I think super proud of you. I think Janta, anybody has a question? Nadia, anyone? Yeah, Mohan, go for it. Mohan. Yes. Yeah, Mohan, go for it. या हाय सर भैया मेरा एक्चुअली क्वेश्चन सूर्या से आपसे है तो बेसिकली आई डोंट हैव मच इन्फो अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट सो डेफिनेटली अगर मैं ये कोहॉर्ट ज्वाइन करता हूँ तो आई विल गेट अ गुड एक्सपोजर कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट है इसके क्या बेनिफिट्स एंड लाइक हाउ कैन आई ग्रो माय करियर इनटू एज अ पीएम राइट मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो मैंने कोहॉर्ट में पार्टिसिपेट किया एंड आई एम गेटिंग दैट प्रोडक्ट सेंस एंड प्रोडक्ट माइंडसेट बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल टूल्स लाइक टूल्स कौन से यूज होते हैं एंड हाउ कैन आई गेन दैट एक्सपोजर अगर टूल्स को यूज होता है या फेयर एनफ मोहन, मैं समझ गया आपका सवाल। देखो यार, अगेन प्रोडक्ट माइंडसेट का ये मतलब नहीं होता कि खाली माइंड, यही आपको समझना पड़ेगा। माइंडसेट मींस अ टोटल चेंज इन योर बिहेवियर इन लाइफ, right? Like learning a tool should not be taught, honestly it should not be taught because उसकी डॉक्यूमेंटेशन दी है। आप इतने समझदार हो, अगर आपका प्रोडक्ट माइंडसेट है ना, तो अगर जैसे आपको क्लेवर टैब सीखना है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एनालिटिक्स के लिए, राइट? तो क्लेवर टैब की डॉक्यूमेंटेशन तो आपको दी है, लेकिन बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट यूजिंग द टूल, द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज द टूल। हाउ टू यूज का मतलब होता है उसके अंदर मुझे फनल कौन सी बनानी है, what are the behaviors that I need to track, right? So it's not about learning Jira और Figma, वो तो आप कभी भी सीख सकते हो। उसके लिए आपको एक कोहॉर्ट में क्यों आना? वो चीजें तो उनकी वेबसाइट पे दी होंगी, right? आपको सिर्फ थोड़ा पढ़ना है and you without spending even 1 rupee you can learn that tool. I generally am not in the right उस तरीके से कि यार कि आपको किसी, अगर कोई कंपनी आपको इसलिए हायर कर रही है एटलीस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए कि आपको कोई टूल आता है, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर की ओपनिंग ही खराब है, क्योंकि दैट्स नॉट समथिंग दैट यू लर्न एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अब प्रोडक्ट मैनेजर के जीवन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और टूल्स आर अ मींस टू एन एंड। लाइक फॉर एग्जांपल यू लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड देन यू वांट टू मेजर द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट, so you use clever tab and you essentially build something on top of it. तो यार मैं इस चीज पे कभी टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं आपको जीरा सिखाऊंगा, ये सब चीजें नहीं है, इतना टाइम नहीं है ब्रो। आपके लिए आपको वो सीखना है कि मैं बेटर डिसीजंस कैसे ले सकूं, उसके लिए आपकी लोग इज्जत करेंगे। दैट इज व्हाई दे विल हायर यू एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, that is why they would understand, they will give you that liberty to take decisions which can change a company's life, right? Tools and everything, that's why I'm saying if you're coming for a title कि आपको टाइटल अच्छा लगता है और आपने अभी तक डिस्कवरी नहीं की, तो मेरे YouTube चैनल पे जाओ और देखो आप वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोहॉर्ट आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अपनी जगह बात बता रहा हूँ कि the entire thesis of becoming a great builder in life is to understand what to build, why to build, बनाना ही क्यों है, ये सब चीजें समझना। और अगर आप ये सब चीजें नहीं समझोगे, आप कितने टूल सीख लो यार, a company like Google is not going to hire you because they're not looking for people who can use tools, right? There can be some random company, देखो टाइटल के लिए प्रोडक्ट मैनेजर तो आप यार यूडेमी का कोर्स कर लो, वहां से भी बन जाओगे टाइटल के लिए। लेकिन अगर आप जीवन में एस्पायर करोगे कि नहीं यार मुझे एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, they would look for how you think, they're not going to look for what tools do you have, right? But we do cover, मैं आपको सेंस दे दूंगा कि आपको क्या क्या सीखना है। जैसे इस कोहॉर्ट में जनता ने अपने आप ही फिग्मा सीख लिया, अपने आप ही इन्विजन सीख लिया, अपने आप ही ये सारी चीजें सीख ली, खुद ही सीख ली, क्योंकि उनको जरूरत पड़ी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी एंड दे लर्नड इट, राइट? मेक सेंस? आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन मोहन। ठीक है, अब हम सोमी के पास आते हैं। सोमी, ओवर टू यू। यस, Thank you, Sharan. Hey everyone.
So मेरे पास 7+ years का experience है into data analyst, product analyst. I have worked for companies like EA, Accenture, Thomson Reuters. तो यार श्रवण की कम्युनिटी में कैसे है, ये तो सबका सिमिलर एक्सपीरियंस है. हम लिंक्डइन पे गए, कब श्रवण टिक्कू, फेमस श्रवण टिक्कू हमारे, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करा, डिकॉन लिखना शुरू करा. लाइक श्रवण ने आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक दिए हैं, तुम्हारा ये गलत है, प्रोडक्ट सेंस गलत है, ये वो 2-3 वीक के बाद एक बार श्रवण मुझे लिखते हैं डिकॉन ऑफ द डे, जहां मैंने उनको बोला कि काम करो इसका वॉइस नोट भेज दो मुझे, इसको मैं लिखवा लूं, कहीं रख लूं, सेफ रख लूं कि श्रवण टिक्कू ने डिकॉन ऑफ द डे दिया है मुझे. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने आप पे वर्क करें, यू नो, फीडबैक लें एंड देन वर्क ऑन योरसेल्फ. कमिंग टू द कोहॉर्ट, लाइक सबका वो सिलेक्शन होने वाला है, आप एक सर्टेन फॉर्म आया होगा आप लोगों के पास, देन द सिलेक्शन गोज, ऐसा जो भी होता है. कोहॉर्ट का एक्सपीरियंस यार बहुत ही अलग है. और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने श्रवण के कोहॉर्ट के कुछ महीने पहले एक कोहॉर्ट ज्वाइन करा था, जहां मैंने इस कोहॉर्ट के कम से कम 4-5 टाइम्स ज्यादा तो पेमेंट करा ही था. तो मैं कैंडिडेट हूँ. आई थिंक सतीश या सॉरी मुझे नाम नहीं याद है, जिन्होंने वो दूसरे कोहॉर्ट का एग्जाम्पल पूछा था, प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, मैं बहुत अच्छे से इसका जवाब दूंगी. तो मैंने कोहॉर्ट ज्वाइन करा और मुझे ऐसा, Can you comment your LinkedIn link in comment section? हाँ जी करती हूँ. तो मैंने कोहॉर्ट ज्वाइन करा और मतलब काफी एक्सपेक्टेशन तो वैसा ही था, ये पढ़ाएंगे और फिर यू नो चलेगा नॉर्मली. बट देन कुछ तो अलग हुआ. कोहॉर्ट में हमारी ग्रुप बनी और मेरी ग्रुप में ऐसे लोग थे, एक ऑलरेडी फाउंडर भी थे, लाइक जो माइंडसेट, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जिस तरह का प्रैक्टिकल यूज केस श्रवण कराते हैं. मतलब मैंने तो अपने पिछले कोहॉर्ट में नहीं करा था. यूज केस तो भूल जाओ. एक यूज केस का मैं एग्जांपल देती हूँ, जहां हम खुद श्रवण को बोल रहे थे ये आदमी ने क्या ही दिया है कि मार्केट पेनिट्रेट करना है लैटिन अमेरिका में उबर का. तो हम सोच रहे हैं क्यों ही करना है इनको, मतलब करना ही क्यों. अभी लैटिन अमेरिका, मतलब अब जो आप कंट्री चूज कर रहे हो उसके पीछे माइंडसेट क्या है, वो क्यों है. और श्रवण हर एक पॉइंट पे पर्सनलाइज फीडबैक देते थे. लाइक अगर मैंने चिले चूज करा है लैटिन अमेरिका में, तो मैंने क्यों करा है, श्रवण मतलब उसको जस्टिफाई करा है नहीं करा है. अगर ये सोल्यूशन दिया, उस सोल्यूशन के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते थे. मतलब वो 50 नंबर उन्होंने इतना ब्रेक डाउन करा था ना कि हम लोग उसी को फिर फीडबैक नेक्स्ट टाइम, अच्छा इसमें कम मार्क्स आए, चलो नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करते हैं. रही बात वो कि यूज केस आप कैसे करते हो, यार आई थिंक वो ओवरनाइट नहीं होता है. आपको मंडे से सैटरडे वो पूरा करना पड़ता है. और अगेन मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल हूँ. श्रवण हैज आस्क्ड लाइक 7 वीक्स फ्रॉम योर लाइफ. वो जिंदगी 7 वीक के लिए आप दे ही दो, कुछ नहीं बचता है. यू वर्क हार्डर. बट आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे कि इफ आई कैन डू इट अगेन, यस आई कैन डू इट. यू नो इट वाज वर्थ डूइंग इट. द वे आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ. मतलब मुझे लिंक्डइन पे इतने लोग अप्रोच करते हैं कि सोमी ये आपका प्रोडक्ट माइंडसेट कैसे है, ये आप बताओ. आज मुझे किसी ने एक्चुअली पिंक किया कि श्रवण के कोहॉर्ट में एप्लीकेशन कैसे फिल करूं, हेल्प कर दो जिससे वो सिलेक्शन हो जाए. मैंने कहा सही है. मतलब यू अंडरस्टैंड जो डेवलपमेंट हुई है ना, जो प्रॉब्लम हम लोग सोचते हैं, प्रॉब्लम डिस्कवरी, जो हम टाइम स्पेंड करते हैं 8 दूसरे लोगों के साथ, आप एक कोलैबोरेशन, रिस्पेक्ट जो सीखते हो, वो आई थिंक मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में नहीं सीखा है. कमिंग टू द मेंटर्स, आई थिंक वो भी थोड़ा श्रवण जैसे ही होते हैं. उनको भी लाइक 24 घंटे जगने की शायद आदत है, वो कभी भी अवेलेबल रहते हैं. और कोई भी मेंटर, मतलब मैं तो सबसे बात करती थी, नॉट सिर्फ मेरे मेंटोर से, किसी से भी कोई भी हेल्प ले लो, मतलब वो लोग हमेशा है. दूसरा किसने जो टूल्स की बात करी थी, मैंने खुद फिग्मा और कैनवा सीखा है ये 7 वीक्स में, बिकॉज आई हैड टू डू इट. तो मैंने प्रॉपर एक वायर फ्रेम बनाया है फिग्मा पे. तो आई थिंक एक अलग एक्सपीरियंस है विच यू नो, जो कोहॉर्ट ज्वाइन करने के बाद आप एज अ पर्सन चेंज होते हो, एज अ प्रोडक्ट थिंकर चेंज होते हो. और लास्ट में श्रवण के बारे में यार क्या ही बोलूं, मतलब सब जानते हो, सब लोग है ना. वो अच्छा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी. तो एक बार 3rd वीक में मैंने संडे का क्लास ज्वाइन किया. मैं 1 घंटे में क्लास धीरे से निकल गई थी. आई हैड सम वर्क. मुझे लगा श्रवण क्या ही ध्यान देंगे 55 लोगों में. इन्होंने मुझे पिंग करा, यू लेफ्ट द क्लास मिडवे. इन्होंने ये भी ध्यान दिया कि मैंने क्लास कब छोड़ा है, ऐसा नहीं कि शुरू में छोड़ा है. तो वो जो पर्सनलाइज अटेंशन है ना, इट काइंड ऑफ इंकरेजेस यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ. एंड एंड ऑफ द डे काम तो खुद ही करना है. श्रवण हमारे लिए काम नहीं करेंगे, हमको हमारे लिए काम करना है. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग. ये था मेरा एक्सपीरियंस. Awesome. I think Labansh का एक सवाल है. Labansh, go for it.
Yes. Somi से पूछ लो. Yes. Hello, Shravan sir. Hello, Somi ma'am. Hello. So my question is, like, most of the peeps here would be having an experience in certain kind of fields like software development or something. So what would your advice would be to make a breakthrough as a college undergrad fresher into APM roles or PM roles? यार मतलब सोमी आप जवाब दे दो प्लीज. हाँ. हाँ, तो यार देखो, डज नॉट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, एज लॉन्ग एज आप खुद पे वर्क करने के लिए तैयार हो, इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप अपने आप पे वर्क करोगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपने पूछा, अगर आप कॉलेज से पास आउट हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न विद 8 डिफरेंट पीपल. आप प्रोडक्ट को देखते कैसे हो, लाइक यू गाइज ओपन द जोमेटो एंड ऑर्डर समथिंग, राइट, वेरी सिंपल. बट आप एक पीएम की तरह जोमेटो को कैसे देखते हो, राइट? उसमें कितने, लाइक यूट्यूब ले लो, यूट्यूब में यूजर है, क्रिएटर है, ये लोग कैसे पैसे बनाते हैं. तो वो जो प्रोडक्ट सेंस आपकी आती है ना, वो आप जब कोहॉर्ट में काम करते हो 8 लोगों के साथ और मेंटोर और श्रवण के साथ, you get that experience and you don't need any prior product experience to excel in the area. That is for sure. मेरा खुद भी नहीं था. मैं was simply मैं एक डेटा पर्सन थी. लोग मुझसे बोलते थे डेटा निकाल के दो, ऐसे करो वैसे करो, मैं खुद कर, बट वो डेटा को प्रोडक्ट में कैसे लाना है ये मैंने इस कोहॉर्ट में सीखा है, आई थिंक. तो लबांश, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि डोंट वरी, अगर आप कॉलेज से भी हो तो इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट सेंस एंड देयर आर पीपल लाइक आपके कोहॉर्ट में मेंटोर्स और इंस्ट्रक्टर हमेशा ही अवेलेबल होंगे टू हेल्प यू आउट. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन. Thank you, ma'am. Fine. Great. Awesome. ठीक है. Let's move forward. Unnati, over to you. Hey everyone. Hi. So my name is Unnati basically. So currently working as a business analyst at Invest for Edu, and the profiles clearly specify I'm a fresher starting out my career, and this job is because of this cohort only, and I got this job जब cohort खत्म नहीं हुआ था. It's in between. ठीक है. तो जितने भी लोग यहाँ पे है ये पूछ रहे हैं मैं फ्रेशर हूँ, मैं कॉलेज ग्रेजुएट, मुझे कुछ नहीं पता, ये वो, भाई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कुछ प्रोडक्ट में. आई वॉज टोटली अ फ्रेशर. मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स कर रखी थी. ठीक है. मैंने अनअकैडमी के साथ करी थी, बट वो पूरा अकेडमिक्स का काम था. ठीक है. मैं टाइम टेबल बनाती थी वहाँ पे, तो मुझे प्रोडक्ट का पी भी नहीं आता था. आई वॉज जस्ट अबाउट कि हाँ प्रोडक्ट कुछ तो होता है. तो मैंने लिंक्डइन पे चालू किया कुछ देखना कि प्रोडक्ट में कुछ तो कर सकते हैं. बिकॉज मेरे को हमेशा ये होता था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो भाई डेवलपर ही कर सकता है, कोडिंग आनी चाहिए. और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू श्रवण यही था, भाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कोडिंग आती है, मैं तो कोडर हुई नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता. हाउ कैन आई लर्न प्रोडक्ट मैनेजमेंट जब मुझे कोडिंग नहीं आती. तो बहुत सारे मिथ थे कोडिंग रिलेटेड. प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था. आई वाज टोटली अ फ्रेशर. हाउ कैन आई एंटर इनटू दिस फील्ड, कैसे सीखूंगी, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बस आई डिड वन थिंग कि मैंने पेशेंटली अपने क्वेश्चंस को अपने पास रखा, चुपचाप इस कोहोर्ट को ज्वाइन किया, श्रवण से दिल खोल के सारी बातें करी, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसको कैसे करना है, एंड टफ एवरीथिंग. आई वाज सो डम कि मुझे लिंक्डइन पे क्या लिखना यही नहीं पता होता था. उसमें भी श्रवण ने बताया भाई डीकॉन करना है, आर्टिकल भेज रहा हूँ. और मेरा पहला क्वेश्चन, अरे डीकॉन करते कैसे हैं, आर्टिकल भेज दिया, उसको मैं लिखूं कैसे. दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता. I truly ask him, भाई बताओ. उसने मुझे स्ट्रक्चर बताया, ऐसे ऐसे कर सकते हैं stuff. And people are here, सब लोग हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए. And this cohort, किसी ने भी पूछा था, I guess, how it is different, right? Appraised, I tried. Air tribe, I tried. ठीक है, I tried. मैंने बहुत पढ़ा, बहुत लोगों से बात करी. भाई वो नहीं आता, फील ही नहीं आता कि वहाँ पे कुछ सीख सकते हो आप. तो here mentors are here. Obviously सबने बताया जगते हैं, भाई नहीं सोता यहाँ, कोई नहीं सोता, सब जगते हैं, और आपको भी जगने की आदत पड़ जाती है. वो 6 वीक 7 वीक आपके घर वाले आपको फोन करेंगे और बोलेंगे भाई कहाँ हो. यू विल बी सेइंग ओनली वन क्वेश्चन, श्रवण या ग्रुप या मेंटोर. आपके घर वालों को भी श्रवण का नाम याद हो जाएगा. ठीक है. तो आपके मेंटर्स भी उसी के जैसे हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगर श्रवण नहीं मिल रहा ना, मेंटर्स हैं आपके लिए, और मेंटर ऐसे ही हैं कि आपको श्रवण की भी कमी नहीं लगेगी. हमारा मेंटर तो ऐसा ही था. वो तो भाई रात के 2 बजे भी असाइनमेंट नहीं होगा, he'll be there with you. तो सीखोगे तो सही. बट आई कैन ओनली से वन थिंग, बीइंग अ फ्रेशर, कि अगर सीखना है तो ज्वाइन करो और अपना टाइम देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव योर टाइम. सीख तो आप जाओगे अगर इंटेंट है तो. आपको ये भी समझ में आ जाएगा आपको ये करना है नहीं करना, यू विल गेट एवरीथिंग. बट यू हैव टू गिव योर टाइम, प्लस यू हैव टू स्पीक. अगर आप नहीं बोलोगे आपका काम नहीं चलेगा. यहाँ बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो श्रवण बुलवा देगा. तो बोलना तो पड़ेगा.
ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन से हियर फ्रॉम दिस कोहोर्ट. एंड हाँ, ये जॉब दिस टैग फ्रेशर के ऊपर वाला @बिजनेस एनालिस्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज श्रवण ने ऐसा सिखाया ना कि पीआरडी कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, पीआरडी में लॉजिक क्या होता है, यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट पीआरडी ओनली आई एम हियर. वो एक असाइनमेंट और एक वो फिग्मा की स्किल जो मैंने यहाँ सीखी, बस बिकॉज ऑफ दैट ओनली मेरा मैनेजर वाज सो इम्प्रेस्ड कि भाई ये कहाँ से लिख दिया तूने, और तेरा कंटेंट में कोई चैट जीपीटी नहीं है, इट्स योर ओन वर्ड्स. वाओ. मैंने ही बोला था उन्नति चैट जीपीटी यूज नहीं करना है. तो मतलब नो चैट जीपीटी, द कंटेंट इज टोटली इन योर ओन वर्ड्स, और वो वैसा जो किसी को भी समझ में आ जाए, बिकॉज श्रवण ने सिखाया, लिखो ऐसा जो 5 साल के को भी समझ में आ जाए. सो यू राइट, यू लव दिस वर्क ओनली व्हेन यू विल गिव टाइम और आपके पास इंटेंट है. क्योंकि कंटेंट तो सेम जो श्रवण ने बोला, उसके यूट्यूब देख लो या लिंक्डइन देख लो, हर जगह प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, पर करना कैसे है और क्या करना है वो किसी को नहीं पता होता, बिकॉज वी आर डायरेक्शनलेस. हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है. सो फॉर ऑल द फ्रेशर्स, ऑल द न्यू कमर्स जिनको कुछ नहीं पता, अभी लग रहा है प्रोडक्ट, जस्ट गो इनटू इट. फिर डाइव मारो एकदम प्रोडक्ट में और श्रवण को परेशान करो कि भाई बताओ क्या करना है. Makes sense. Yes. Makes sense. Thank you, Unnati. Thank you, बच्चा. ठीक है. Anyone has a question to Unnati? Anyone from a fresher? हाँ, yeah, Mamta. Go for it, Mamta. Yes. Hello. Yeah, I'm audible. Yeah. Audible. Okay. Yeah. My question is to you, Shravan, and all the who are there. मेरे लिए बस ये एक क्वेश्चन है कि काफी मैं यहाँ पे कोहॉर्ट में देख रही हूँ कि यंग पीपल हैज जॉइन, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. तो मैंने भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, बट मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है. दैट इज द रीजन आई एम फॉलोइंग ऑन द लिंक्डइन, सीइंग योर यूट्यूब. सो मुझे बस वही जानना है कि व्हाट इज द मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपको. तो ममता, हमारे कोहॉर्ट में ऐसे, मैं अभी एक बंदे से बात भी कराऊंगा आपका, हमारे कोहॉर्ट में ऐसी जनता भी है जो 6-6 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड उनका नहीं हुआ. 6 years, it's a 6 years gap, and that's what I'm saying. और अगर आज वो बंदा यहाँ होता ना, we couldn't bring everyone ना, क्योंकि the call has to end on time. I couldn't bring everyone. अगर वो होता ना तो आपको खुद पता चलता. देखो यहाँ हमारे कोहॉर्ट में मॉम्स थी जिनके घर में अपनी फैमिली को उनको दिया. श्रेया was one of the moms, by the way. Shreya, right? Yeah, he is here. भैया अभी is here. अभी go for it. अभी please. मैं अनुराग की बात कर रहा था, but अभी भी है. तो अभी can you answer to Mamta's question? Yeah. Hi Mamta. So yes, मेरा भी सिमिलर बैकग्राउंड है. मतलब मेरे पास 4 साल का ऑलमोस्ट 4 years का गैप है. So जो आपकी इनहिबिशन है अंदर, आपके मन में जो इनहिबिशन है कि मेरा कैसे होगा, हाँ मैं कैसे पिवट करूंगी इस फील्ड में, तो इट विल बी वेरी इजी. देखो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इन 7 हफ्तों में यू विल नॉट गेट टू नो एनीथिंग न्यू अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बट इन 7 हफ्तों में आप बेसिकली एक अनब्रेकेबल माइंडसेट डेवलप करोगे, एंड दैट माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस कोहॉर्ट से आपको डिलीवर होगा. सो ये सोचना कि मैं बहुत गैप से आई हूँ, ये कुछ नहीं है. बेसिकली आपको वो माइंडसेट मिलेगा, वो इंटेंट मिलेगा, क्योंकि कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल है. यूट्यूब पे भी कंटेंट है हर जगह, बट बेसिकली हम लोग जैसे हम सब अपने टेस्टिमनी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. सो हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को किसी भैया ने थोड़ी बोला कि अपना टेस्टिमनी शेयर करो या कुछ भी. बेसिकली हम सब ने वो एक अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट हुआ है इस कोहॉर्ट में कि सबको, एवरीवन फील्स ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन. मगर मेरे कोहॉर्ट में 52 लोग थे. मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज से चाहे 2 साल बाद भी या 5 साल बाद भी उनमें से कोई भी बंदा मेरे पास आके कुछ भी हेल्प मांगता है या मैं किसी हेल्प मांगता हूँ, तो आई एम वेरी श्योर दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी. सो वो एक अबंडेंस माइंडसेट, वो एक सेंस, वो सब इस कोहॉर्ट में उन 7 हफ्तों में डेवलप हुआ. बिकॉज कंटेंट तो हमारे पास पहले से ही था, भैया का चैनल तो पहले से ही था, सब कुछ पहले से ही था. बट मैंने अपना, जैसे मैंने 4 साल के बाद गैप के बाद मैंने रोल स्विच किया. आई एम नाउ वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर. सो यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई योर पोजीशन. ऐसा कुछ भी नहीं है, नो वन विल क्वेश्चन यू कि आपके पास इतना गैप क्यों था. क्यों? बहुत लोग हैं कि हेल्थ रीजन की वजह से गैप हो जाता है, या किसी को करियर में, मतलब इट इज ऑल अबाउट रिस्क, हाउ यू मैनेज रिस्क इन योर लाइफ. तो बहुत लोगों ने अपने करियर में गैप लिया है, बट इट इज ऑल अबाउट हाउ यू जस्टिफाई दैट. और आपके पास वो इंटेंट, वो मतलब दैट कैपेबिलिटी टू प्रेजेंट, हाउ, कैसे आप उस चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या आपने सीखा है, क्या आपकी लर्निंग्स है, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स. और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो माइंडसेट आप डेवलप करोगे यहाँ से,
दैट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कहीं से मुझे तो कहीं से नहीं मिला। मतलब मैंने बहुत कोर्सेज करे, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कोर्स जो मैंने पूरा कंप्लीट भी किया, और कंप्लीट उससे आगे मतलब मैं तेरे को वैसे भी करना छोड़ता तेरे को थोड़ी ना मैं आई वुड हैव नॉट लेट यू बिफोर कंप्लीटिंग। कसम से मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि एक बार भी लेक्चर में ऐसा 1 मिनट भी नहीं होगा कि बहुत बोरिंग होगा। कभी कभी कैसा होता है, कोई जो लास्ट के वीक्स होंगे वो बहुत हैवी कंटेंट होगा, बट इट विल बी नॉट लाइक, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो हैवी कंटेंट बहुत जरूरी है लाइफ में, बट भैया इतना इंटरेक्टिव बना देंगे कंटेंट को, इतना इंटरेक्टिव बना देंगे, ऐसा नहीं होगा कि जैसे दूसरे कोर्स में होता है कि बीच में लास्ट के 30 मिनट हम क्वेश्चन के लिए रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी मिनट हर एक बंदा हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछता है, बीच में रोक रोक के पूछता है। वो 2 घंटे की कॉल 4-4 घंटे की चलती थी, और कभी भी भैया ने मना नहीं किया कि जैसे अभी बोलते हैं कि ड्यू टू मतलब टू कीप द टाइम इन प्रेम की हम रुक जाओ भी बाद में करते हैं, कुछ नहीं, सबके क्वेश्चन सारे आंसर हुए हैं। एंड दैट इज वाई वी ऑल आर हियर, वी आर सो, मतलब हम इतना थैंकफुल फील करते हैं। और स्पेशली मेरे मेंटर हमारे साथ 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक सुबह कॉल पे बैठे हैं। सो केस स्टडी का यार ऐसा नहीं है कि भैया ने केस स्टडी दे दी तो हमने केस स्टडी सॉल्व करी है। बेसिकली हम लोगों में हमारे ग्रुप थे, सब में कंपटीशन रहता था कि कौन सबसे बेस्ट केस स्टडी देगा, बट ऐसा कंपटीशन नहीं रहता था कि टॉक्सिक कंपटीशन हो। सबको ये था कि हमें एक्सेल करना है। वो एक्सेल जो एक माइंडसेट है ना, मैंने कहा ना, वो माइंडसेट बहुत बहुत डिफरेंट माइंडसेट था। कभी भी किसी को ऐसा नहीं था कि मुझे इस ग्रुप को काटना है, मुझे कोई मैल प्रैक्टिस यूज करनी है। सबको ये था कि मुझे बेस्ट देना है अपनी तरफ से। और आई थिंक उस चक्कर में आज हर एक बंदा एक बढ़िया माइंडसेट लेके यहाँ से जा रहा है, एक अबंडेंस माइंडसेट लेके जा रहा है, एक अनब्रेकेबल माइंडसेट लेके जा रहा है। और हर बंदा जो जिस जिस स्थिति से वो आया था, आज सारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस टाइम। सो आई थिंक ऑल थैंक्स टू माय मेंटर एंड श्रवण भैया। दैट इज थैंक यू अभी, थैंक यू गाइस। बाय द वे, मैं अभी का और नम्रता का मेंटर हूँ, ठीक है, मुझे भी रीच करना है, ठीक है। एनीवे आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू गाइस। श्रवण भैया तो अच्छा, एक लास्ट चीज और, आपने सेकंड टेस्टिमनी सूर्या की सुनी होगी। मतलब पर्सनली आई वांट टू शेयर, सूर्या वाज अ पार्ट ऑफ माय ग्रुप। अगर मैं आज एक हफ्ते बाद बोलता कि सूर्य टेस्टिमनी देगा ना, तो सूर्य कभी नहीं देगा। आज सूर्य ने 7 हफ्ते बाद सबके सामने 100 लोगों के सामने आके टेस्टिमनी दी ना। मतलब आई एम सो सरप्राइज कि सूर्य वो बंदा है जो शायद स्टार्टिंग में नहीं बोल सकता था सबके सामने, आज उस बंदे ने सबके सामने आके टेस्टिमनी दी, एंड उसने थॉट्स इतने अच्छे से सबके सामने रखे। तो दैट इज व्हाट ही हैज डेवलप्ड। एक प्रोडक्ट सेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो एक डिफरेंट चीज है, वो सब सीख लेंगे, इतना कंटेंट पड़ा है, बट ये चीज कोई नहीं सिखाएगा। सो दैट इज, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी हिम। सो ऑसम है। ठीक है, मैं आप एक बार सिमरन का क्वेश्चन ले लेता हूँ, एंड देन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम जनता, आई वांट टू फिनिश दिस कॉल बाय 10:30 या 10:35 मैक्स। मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, और बाकी ये रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी होगी, लेकिन सिमरन आई वुड गो फॉर इट, एंड देन ऋषभ भाई यू वुड स्पीक। ठीक है सिमरन? यस। Sorry, I raised the hand by mistake. अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, ऋषभ भाई, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज गो फॉर इट। Yeah, hi guys. So my name is Rishabh Kaul, and मैं आप लोग को एक just give you a brief introduction about myself. So I have been in the workforce since 11 years, and for me, I had taken a gap in 2022 August से, and I decided to follow my heart. और मैंने बोला कि मुझे product management में घुसना है, and so मैंने बहुत सारे courses किए. I've done a lot of different courses, spent a lot of time interacting with a lot of people, different kinds of people. I've interacted with a lot of founders as well, and I've done a lot of project work as well. Then when we came across the cohort started by Shravan Tikku, I'm telling you, it has changed the way I think now. Coming from years of experience and then learning something and then applying it to transition to a new profile is not easy. But he has made me equipped well enough to tackle any problem now. So मैं आपको एक simple example देता हूँ. My mind has changed now. Now मेरा दिमाग अब systems thinking में होता है. And if you think about your future trajectory as well, product management is an ever growing field and ये constant learning का field है. And अगर आप course का नाम भी देखोगे, it is called breaking into product management. So the idea is you are going to break into product management, but you need the right set of hands and you need the right guidance. And this is the platform that you should think about. So I can tell you from my experience, I have learned a lot. I have been able to collaborate with the best people. I have grown personally as well as professionally in my life. And believe it or not, now just one simple cheese मैं आपको बताता हूँ.
I have been given a LinkedIn Top Voice badge in product management. And that happened because of Shravan Bhaiya's motivation, right? I'm 33. 33 may at this age and then transitioning into this is a clear-cut indicator that bhai, everything is going the right way. And I have a lot of founders also reaching out to me. It's only because my interest in product management has reached that level कि ये सब जो जोश है, this has come through this cohort. And I'm telling you, from peer-to-peer learning, I have also learned tools like Figma, Canva. I mean, you name it. मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पे सीखी and the people over here are amazing. Hand holding होगा आपको जो आपको कोई भी कोर्स में नहीं मिलेगा. So trust the process, trust the mentors have done a great job. I had a mentor by the name of Atharv. He did a great job with us. जो hand holding किया है, हम लोग रात रात को भी सवाल पूछते थे. He has helped us in preparing for interviews, हर चीज में. So we're going to be taken care of. And जो उसकी बाद की journey है is something जो आपकी मेहनत का, it's up to you. But आपको जो mindset है, वो यहाँ से. So all the best. And yeah. Yes. ठीक है. Sukanya, over to you. We will take 2-3 more. Sukanya, we have to finish quickly. ठीक है. और अगले वाले जितने भी 2-3 लोग हैं वो जल्दी बात करें. मैं लास्ट के 20 मिनट सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ. I want everyone to ask questions. ठीक है. Sukanya, over to you, please. Yeah. Okay, so I am Sukanya. As you can see, I have 9+ years of working experience in engineering and Juniper Networks. So after almost a decade of engineering, I am now aspiring to become a PM out of my growing interest in product space and also to fulfill my long lost dream of pursuing MBA. So I joined this cohort because I was following Shravan for years. I have gone through his YouTube videos also. I felt very inspired and motivated. So I joined his cohort as soon as I saw this link he shared over LinkedIn. So in this joining this cohort has been a life-changing decision for me. So besides brainstorming with case studies and all, we went through so many fun sessions like tarot reading, where Namrata predicted about the upcoming matrimonial alliances, the city-wise meetups, birthday surprises, spiritual talks, and everything. This cohort is not an MBA course type, not any boring lecture. It's like interactive sessions throughout 7 weeks. While joining this cohort, Shravan told us, like, you give 7 weeks of your life to me and you will come out as a different person. And it is very true. There will be like 3 to 4 hours of weekend sessions every Saturday and Sunday, and Monday to Saturday we had spent every day till night 1 o'clock. We worked on the weekly assignments or the case study that involves this data research, extensive research over the internet, preparing graphs, implementing the solution, and then designing the mock-ups and preparing the presentation. So be ready to sacrifice your lunch dates, movies, dinner plans, and everything, and you will not regret. You will enjoy it. Now we miss what we used to do over the weekends. Shravan said initially that just intent sahi raha, and if you are giving the fight, then you will come out productive and successful. And it is true. So many industry stalwarts like Kamalika Poddar, top voice of LinkedIn, and ACT CMO Ravi, Google PM Stefan, they all came and shared their experience with us, and they answered our queries and all. So they made it very clear that anyone, irrespective of any educational background and work experience, can become a PM. I will also mention our mentors, Praveen's role in our lives during this cohort. So he is a PM at Myntra. He used to sit with us almost every weekend, every day, every evening, all the way. Even on the 31st December night also, he spent with us only. He also brought his flatmates and friends to rescue to help us with all the PRDs. He was so motivating and so patient also with solving our queries. Like, we started from scratch as product manager. We don't have any MBA degrees. Still, we learned from him how to work on things and etc. And awesome. Talking about Shravan, so Shravan you don't have to. Shravan is like, he can simplify any tough concept. So we
system thinking, system design, any technical aspect, everything he will simplify and make you understand so easily that you don't need to again go back and listen to the videos. He is teaching us the same concepts and same things which are already there available over the YouTube and internet. You can search it. But to understand the verbosity of the things which Shravan teaches, you need a mentor like Shravan only, because he can make things simplified and easy for everyone. I'm a person who sleeps in first 5 minutes of any boring lectures. This is the first time that all throughout the 7 weeks, I never slept. 3-4 hours of weekend sessions after lunch, I used to sit on the weekends. I never slept. I never blinked my eye. Then I will miss something. He was really like, it will seem like you are part of the course. It will not seem you are in a virtual online course. It will feel like some classroom only I'm there. And once you attend any of the sessions which are already available on YouTube, you will understand how the sessions actually go through. This cohort, what I want to say is that this cohort was worth more than every penny I paid for it. He's like a blessing in disguise. He can solve all your problems. His energy and positivity can bring anyone back to track. He says, future is not in your hands. Leave it on Mahakal. Just fight maro, intent sahi rakho. And then everything will be done. This is not an MBA that can be completed in 7 weeks, but it covers all necessary aspects you need to know to become a PM. This cohort will make you market ready. Just give your efforts. And you will come out as a different person with a positive mindset, and you will also think differently. You will think differently as a person, as an employee, and you will be a different person, totally new person, always having sense of gratitude for everyone and be positive in any situation. We have so many type of candidates from different backgrounds. Some are from PM background already, some are from engineering, some are from doctor medical background also. We have Romit, who what Shravan was telling, 6 years of gap because of his UPSC preparation. He is also now feeling very positive and with a strong attitude. He now thinks he can crack any job of a PM. So Awesome. the cohort, and nothing can stop you. It means your life will change. Awesome. Thank you, Sukanya. Thank you very much for being so kind. VG, you have a question before. Please go for it. Yeah. I see you have raised your hand. Yeah. One question I'll take, and in another 7 minutes, we will finish. And last 20 minutes are open questions. Okay? VG, go for it. Okay, fair enough. Okay. I don't think that he has a question. Tahsin bhai, over to you, please. Sure. Hello, is it audible? Yeah, VG. Go for it. Yeah. So my question is to Avi, so Avi has a 4 years of career gap, right, before joining this course. So I just wanted to know, does he face any kind of difficulty in finding or giving the interviews and all those things? So that was my question to Avi. Sure. Avi, do you want to answer that? Yeah, hi VG. मैंने बोला ना VG, जैसे कि you have to justify your position. The way you justify, the way you answer the questions, बस आपको it all depends कि आप justify कैसे करते हो अपनी position को. और यार इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जिनके पास गैप है. किसी के पास करियर गैप है, किसी को हेल्थ रीजन की वजह से गैप है. So it doesn't matter. I got into an industry, I got into an APM role, so it didn't matter. So I'm a live example. तो मैं ये बोलूँ कि I'm still looking for jobs. Although I'll be looking for better opportunities, but still I got into it after a gap of 4 years. So I'm a live example. तो मैं बोल सकता हूँ कि how you justify yourself is all that matters, and how you justify that sense कि आपके पास कैसी product sense है, आप कैसे सोचते हो. जैसे कि भैया ने अभी बोला कि tools are not important. What important is इस कोहोर्ट में क्या सीखा मैंने. ये नहीं सोचा कि सोचना क्या है, अच्छा कैसे सोचना है वो सीखा हमने बेसिकली सबने. वो अच्छा सोचना, वो रेलिवेंट कंटेंट और रेलिवेंट इंटेंट, और उस चीजों को सबको साथ में लेके कैसे जस्टिफाई करना अपने आप को. दैट इज व्हाट वी लर्नड, एंड उसी चक्कर में मतलब आई गॉट टू जस्टिफाई माई सेल्फ एंड गॉट इनटू अ रोल, APM रोल. सो इट डजंट मैटर यार, frankly it doesn't. It is all a gimmick. It is all your inhibition. I can understand that, but I think soon it will go when you'll get to learn on this cohort. I hope so that you get into this. Thanks for the reply. Makes sense. Tahsin bhai, over to you, please.
Yeah, thank you, Shravan. Hi, everyone. First of all, I would like to welcome you all to this great community of abundance. As you have already seen, most of my cohort members have been already saying that, right? Uh, Before I get started, right, I just want to first congratulate you all because you have taken your first step of being better at product management and more than that, being better at being a human being, right? So that is your first step by joining this cohort. So congratulations to all of you. A little bit about myself. I have almost 13 years of experience in this industry. Predominantly, I had been a BA throughout my career, mostly into US healthcare. That's where I spent most of my time. But I've recently made a switch to being a product manager at a startup in Dubai. So overall, this cohort, right? When I was looking out for in my new role, looking out for guidance and mentorship to know and read about the nuances of being a product manager, because even after having 13 plus years of experience leading big teams and working with major clients, right? It was still a challenge to get into that product space and product mindset. That is where I was especially looking on LinkedIn and other sources where I can find somebody who is giving me relevant knowledge and guidance to excel at what I do. That's where I stumbled upon the YouTube channel of Swagwala PM and I started following Shravan. And one thing led to another. I joined his WhatsApp community. I started to follow him, the way he's sharing this abundance of knowledge for free, right? That's what attracts you more towards Shravan, that he doesn't hold back. He can sell this abundant knowledge for some cost, right? But he's giving it for free. That's when I realized that I have found the right mentor. And then when the cohort happened, I applied for it, and I was fortunate enough to get shortlisted through that and joined it. Now, speaking about the cohort, where do I start? There are so many things, but let me try to break down about first cohort members. Shravan ensured that we had people, a mixed pool of people with different backgrounds, somebody who's a fresher, somebody who's experienced from different domain, so that we have different perspective in the overall cohort. So he ensured that, and he shortlisted the candidates very well. And the course structure was also very well planned, right from the basic to the advanced level. He has been considered enough to handle every person's learning capacity, so that the course is gradually increased in the complex level, so that everybody can get acquainted. And the case studies were also planned in a way that all of our learnings that we do are applied into the case studies in the subsequent weeks, right? So that was well planned by him. And the most important part is the personalized attention that we got, right? Within the cohort, all the team members were supportive. You could share thoughts, exchange ideas, get feedbacks, and all of that. And especially the group that I was in, I had made some great friends, great network. I feel that it is an extended family who can support you, guide you, share thoughts with you, right? And my mentor of the group, Suraj, I would like to thank him. He has gone way above his needs and spending time with me late night hours, helping me in case studies, giving guidance, who himself is the founder at a startup. So imparting that knowledge, I have been very thankful to him throughout the journey, right? And I also like the guest lectures that were called onto the cohort. Shravan ensured that he did not bring only PMs to this cohort. He got people from different genres. He got a CMO of ACT to teach us how marketing strategies are. He got us somebody from a YouTuber content creator to make us understand how do you be in the trend and prepare a brand of yourself. He got us a group product manager from Adobe, who shared his 20 years of insight with us. And the best part is you can actually go ahead and interact with them. You can ask your questions. They will give you the insights, which I don't find in other cohorts. You generally don't get to interact that often. So that's another great thing about the cohort. So I think at the end of the 7 weeks, I feel satisfied that I have become better as a person, become better as a product manager, have the right mindset to excel at what I do. Right. So I just recommend all of you to join this one, and it will be a life-changing event for you. So go for it, guys. बहुत बढ़िया तासिन भाई, thank you very much for giving that
दिस एक्सपीरियंस। अब मैं बस एक और एग्जाम, आई एम सॉरी, एक काम करते हैं जल्दी जल्दी, अगर आप एक एक मिनट में जल्दी तीनों लोग बात करो, यही है आपका कंस्ट्रेंट, मैंने आपके कंस्ट्रेंट से ही बोला है। तो सबसे पहले सौरभ बात करेंगे, आप 1-1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करो, फिर उसके बाद सोनाली के पास आ रहे हैं, और आई थिंक 1-2 और लोग हैं, वी विल फिनिश दैट एंड देन आई वांट टू ओपन अ Q&A, जहां पे और मैं लास्ट में, जनता प्लीज स्टे, लास्ट 5 मिनट आई विल टेल यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कैसे कैसे ये चीज काम करती है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो यू विल हैव टू जस्ट वेट फॉर, it's 10:10, we will just wait till 10:30 at max, ठीक है, 10:30 then 35, ठीक है। चलो सौरभ, over to you। yes या सो हेलो एवरीवन। सबके पास एक ट्रेड देखा होगा, सब लोग बहुत बोलते हैं, बिकॉज हम लोग सब श्रवण भाई के स्टूडेंट हैं, तो ये जेन्युइन क्या बोलते हैं, वो जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं सब में, सब लोग बहुत बात कर रहे हैं। तो आई ट्राई टू कवर थिंग्स व्हिच इज नॉट कवर्ड, या मेरे बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि I have been into product development, front end, back end, full stack experience, and before that I was doing freelancing work. So I had experience of technical things, but not how to convert those technical stuff into product management, how to manage team, how to get different people from design, from even from front end, back end to work together. क्योंकि मैं खुद front end में काम करता हूँ, तो मैं back end वालों को गाली देता हूँ कि क्या कर रहे हैं भाई, भेज नहीं रहे, back end वाले हमें बोलते क्या front end बना रहे हो करके। So there is lot of things that goes on behind एक प्रोडक्ट चलाने में, वेयर इज द डिजाइनर्स आर नॉट दैट कोलैबोरेटिव, कि उनका डिजाइन से एकदम सर के ऊपर से जा रहा है फ्रंट एंड वालों को, एंड देन मैनेजर का अलग ही चल रहा है। सो दीज थिंग्स, एवरीथिंग, इट्स लाइक अ मिनी कंपनी व्हाट वी आर रनिंग हियर, एंड एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, and everyone is learning how to be a product manager by handling themselves and handling the whole team. You will learn leadership, you will learn different principles on how to understand each other's opinion, how to cut down on some things, and how to progress with as a whole team, taking all the constants ki theek hai, everyone is agreeing on some idea, and then we'll go ahead. So these things are very important. And then mentors ka, so I don't know kitna like kitna bol sakte hai, because Shravan bhai also had a limitation on how much he can reach. That is where mentors came in, and for us Subhasis was like next level. Like I couldn't have asked for a better mentor than him from day one. ऐसा लगा ही नहीं कि आई हैव बीन मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक ऐसा लग रहा है 7-8 साल का दोस्त है जो अभी हमें मेंटर मिल गया है करके। इट्स लाइक सो गुड, लाइक बिरयानी भेज रहे हैं उनके घर पे, एक मेंटर को किसको केक आ रहा है घर पे। तो दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड लाइक relation what we are building here, and this is very hard to explain. It's only by joining what you'll understand. Everyone is talking about it and it is very much genuine. ऐसा लग रहा होगा teleprompter है कि हाँ मैं पहले ऐसा था अब ऐसा बन गया, but it is truly after 7 weeks you will also be telling the same line कि पहले मैं क्या था और अभी मैं क्या बन गया, all the principle basis, or be it on the product thinking basis, be it anything. And even the what 1 minute Shravan has given me now, of course I have exceeded that, but this is the way case studies presentation will happen. It will be around 5 minutes, 3 minutes, जिसमें हमको एक हफ्ते का पूरा काम बताना है. So yeah, that's it from my side, Shravan. Awesome, yeah, Saurabh. Thank you very much, Saurabh. Next, can we move Harshal? Please, Harshal, go for it. Yeah. Hello, my name is Harshal and I'm working as a technical product manager at Sling TV. मैं सिर्फ 2-3 चीजें कवर करूंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम, जो शायद कवर नहीं हुई है. नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपके लास्ट हफ्ते में आपका मॉक इंटरव्यू होता है, आपके पीयर्स इंटरव्यू लेते हैं, श्रवण भैया खुद इंटरव्यू लेते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं. मेरे ग्रुप के मेंटर है सूरज भाई जो को होस्ट कर रहे हैं ये कॉल, तो हम लोगों के ग्रुप ने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, तो you will get a lot of different things from that, right? So वो मॉक इंटरव्यू इतना आपको हेल्प करेगा, राइट, कि कैसे इंटरव्यू देना है, क्या सवाल एक्सपेक्ट करना है प्रोडक्ट सेल्स के बारे में, सॉल्यूशन स्पेस, द प्रॉब्लम, राइट. तो वो एक है. दूसरा मैंने यहाँ से क्या सीखा, तो हर्षल वर्जन 1 जो बिफोर द कोहॉर्ट था और जो हर्षल आफ्टर द कोहॉर्ट है, राइट, वो अलग है हर्षल. सो इट्स नॉट अबाउट आप प्रोडक्ट सीख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि ये हर्षल ह्यूमन बीइंग कैसे चेंज हुआ है, राइट, व्हाट इज द डेल्टा, दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस. एंड द लास्ट वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट माय मेंटर सूरज, राइट. तो क्या मींस इनके पास 24 घंटे नहीं, इनके पास शायद वो दिन के 48 घंटे, कभी भी पिंग करो, कभी भी ऑनलाइन है. रात के 2 बजे हम लोग केस स्टडी पे सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी पिंग करो, कभी भी अवेलेबल है. सो इट्स जस्ट उनको देख के ना आप अलग मोटिवेट होते हो, अरे यार ये इनके पास इतना टाइम है, हम लोग क्यों फाइट नहीं मार सकते.
तो वो मोटिवेशन चीज अलग है। तो या आई एम रियली लकी और ग्रेटफुल कि मैंने कोहोर्ट ज्वाइन किया। थैंक यू श्रवण भाई एंड थैंक यू सूरज भाई फॉर एक्चुअली बीइंग लेटिंग मी पार्ट ऑफ दिस कोहोर्ट। थैंक यू हर्षल भाई, वी आर इक्वली ऑनर्ड। ठीक है सोनाली, जल्दी खत्म करना है, 2 मिनट में खत्म करना है, बच्चों के सवाल भी सुनने हैं। ठीक है चलो। हाँ जी भैया। तो guys, as you can see, I'm a product analyst at Paymentus. इससे पहले I was a software engineer for 2.5 years. I was not happy with what I was doing, so इसलिए I shifted to product management. Cohort ने मेरे लिए क्या किया? मैं 1 साल से प्रोडक्ट एनालिस्ट की तरह काम कर रही हूँ एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, बट आई वाज वेरी लॉस्ट कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब आई टुक कोर्स, जैसे किसी ने पूछा था कि कोर्स में क्या डिफरेंस है, मैंने लिया हुआ है वो कोर्स और आई इंटरनली ट्रांजिशन उस कोर्स की। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग इट, मेरा बेसिक्स उससे क्लियर हुआ, बट प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करना है मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने इंटरनली ट्रांजिशन कर भी लिया, बट जितना मैंने सफर किया है उस 1 साल में, आई नो दैट मतलब आई वाज नॉट एबल टू मैप आउट की एग्जैक्टली उन कॉन्सेप्ट्स को मैं यूज करूँ तो करूँ कैसे। तो दैट्स, मैं भैया को पहले से फॉलो कर रही थी, उन्होंने कोहोर्ट लॉन्च किया, आई वाज लाइक यहाँ बस एंट्री मिल जाए एक बार, आई विल बी सॉर्टेड। मैंने एंटर किया एंड 7 वीक्स में आई हैव गॉट रिव्यूज फ्रॉम माय सीनियर्स कि मेरा कुछ मेरे काम में चेंज आया है, कि मैंने कुछ तो चेंज किया। आई कैन वर्क विद डेटा वेल। मैं मतलब लिटरली उन्होंने मतलब बोला है कि कुछ तो चेंज आया है तेरे अंदर, कि कर पा रही है अब तू, बेटर कर पा रही है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है कुछ तो मेरे को हेल्प मिल गई है। मेरी तरफ से बस यही है कि बाकी कोर्सेज से इट्स 100x बेटर। आई वुड से दैट यू विल नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेंगे, आपको वो कैसे यूज करना है वो भी पता चलेंगे। भैया समझाएंगे, आपको जो केस स्टडीज मिलेंगी वो इतनी डीप होंगी कि आप उनको ऊपर ऊपर से कर ही नहीं सकते हो। यू विल हैव टू डीप डाइव इनटू द डेटा पार्ट, इनटू हाउ द कॉन्सेप्ट इज वर्किंग, कैसे कैसे हम उसको लिखें। कुछ भी लिख दोगे नहीं चलेगा। द गेस्ट लेक्चर्स वर ग्रेट। My favorite was Ravi. He is a CMO at ACT, and मैंने पहले भी बोला था, मैंने जैसे ही उनका गेस्ट लेक्चर हुआ मैंने बोल दिया था ग्रुप पे, आर्ट्स एंड प्रोडक्ट यूजिंग कम्युनिटी वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि किसी का देखो या ना देखो इनका देख लेना, you'll just love him। आपको एक अलग तरीके का एनकरेजमेंट मिलता है जब आप उनको सुनते हो। बस आपका मतलब मेरे पहले बॉस भी थे। योर माइंडसेट विल चेंज। मतलब आपको लगेगा कि कर सकते हैं यार, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक बार वो हो जाता है ना, मैं भैया को हमेशा यही बोलती हूँ कि कर लेंगे। अब अगला अगर इतना है तो कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, जस्ट बी योरसेल्फ, फिल आउट द फॉर्म, डोंट प्रिटेंड एनीथिंग। ही नोज एवरीथिंग एंड ही नो कि आप प्रिटेंड कर रहे हो। तो जस्ट बी योरसेल्फ एंड फिल आउट द फॉर्म, you'll definitely learn a lot। तो yeah, his name is Ravi Karthik. Ravi Karthik. Yes. ठीक है, तो I think we are towards the end of it, Janta. Before we effectively move towards the Q&A session, where I want you to raise hands and ask questions, whatever. यार देखो, मेरा इंटेंट ये कोहर्ट लेने का, मैं अपने जीवन में कुछ भी और कर सकता था। ठीक है, मैं एक एजुकेटर हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ। आई वांट टू क्लियर 1 or 2 थिंग्स। आई एम नॉट द जॉब क्रिएटर। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको ये झूठ बोलूंगा कि नहीं यार इसको करने से आपको, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, ये सत्य है और एकदम सत्य है कि अगर आप इस कोहर्ट में मेहनत किए और लेजिट मेहनत किए ना, नौकरियां आपकी लग जाएगी। आशु की 3 लग गई हैं, उन्नति की नौकरी लग गई है, बहुत सारे लोगों की अपने आप लग चुकी है विदाउट। मैंने रेफरल प्रोग्राम, ऑनेस्टली इन बच्चे वेट कर रहे हैं, मैंने चालू भी नहीं किया अपनी जगह से, मैं रेफर करना भी अभी चालू नहीं किया हूं। मतलब और हमारे कोहर्ट से कम 4-5 लोग तो मैं ऐसे ही गिना दूंगा जिनका इन मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया सैलरी से नौकरी लगी। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि श्रवण ने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद और उनका माइंडसेट इतना चेंज हुआ कि जिससे भी वो बात कर रहे हैं, द पर्सन दैट पर्सन इज गेटिंग इम्प्रेस्ड, right? Because they see that the person is thinking in so much in deep. So first and foremost, it's not a job guarantee program. मैं नहीं बोलता है ना मैं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप जेन्युइनली फाइट मारोगे, जेन्युइनली अपना खून जलाओगे, उन 7 हफ्ते मेरे को समर्पित कर दोगे, समर्पित का मतलब समर्पित है, अगर मुझे कर दोगे तो आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आपको जॉब के लिए कभी जीवन में सोचना नहीं पड़ेगा। You will not have to think about jobs. You will figure out a way, and you will come out of that trench, and you will figure it out. That's the first thing. The second thing that I want to be very rational about, right? Ki it's going to be hard. It's not going to be easy.
मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि आप पैसे देके आप आओ और आप बोलोगे कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूंगा या मैं गेस्ट लेक्चर अटेंड नहीं करूंगा या मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? मत आओ। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, लेकिन आप तभी आओ जब आप ये कमिट कर सकते हो। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप उन 7 हफ्ते में मेरे को ये बोलते हो मेरे दोस्त की शादी है या मेरे कजन की शादी और मेरे को शादी अटेंड करनी है, डोंट कम, प्लीज डोंट कम। आई एम आस्किंग फॉर 7 वीक्स ओनली, आई एम नॉट आस्किंग फॉर 2 years, राइट? 7 वीक्स। हाँ, अगर आप बीमार पड़ जाते हो, जेन्युइनली बीमार पड़ जाते हो और आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है घर पे कोई बड़ी, तो आप मुझे पहले बताओ, क्योंकि हमारे कोहोर्ट का अटेंडेंस लाइक दिस कॉल हैज बीन 95% प्लस। हम 60-70 लोग थे, 60-65 इंक्लूडिंग मेंटर्स। हर कॉल में 57-58 लोग होते थे बेयर मिनिमम, और जो गिने चुने 2-3 लोग होते थे वो मेंटोर ही होते थे, बच्चे तो कभी नहीं जाते थे, राइट? ठीक है, दैट्स वन। थर्ड थिंग मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपके लिए आपको ये चॉइस बनानी है। देखो, मैं आपसे ये क्लियर बता रहा हूं, मेरे यूट्यूब का कंटेंट इतना है कि अगर आप जेन्युइनली मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक ही कंडीशन है, किसी चीज को सुनना और किसी चीज को करना, ये दो अलग चीजें होती है। मतलब you might hear the same things, the same framework, the same things, but if I ask you a random question, say that maybe design, should Netflix do ads, right? How will you think about that problem statement? How will you apply that? वो बहुत अलग चीजें होती है। तो इसीलिए पैसे की बात नहीं होती ब्रो, इसमें ये बात नहीं है कि आपको ये सोचना है कि फ्री। अगर आपको ये चॉइस बनानी है कि मैं YouTube से पढ़ना चाहता हूँ जहां पे मुझे शायद 8 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए टू डेवलप दैट लेवल ऑफ माइंड सेट, राइट? क्योंकि मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के फेवर में नहीं हूं कि किसी भी जगह पे जाके प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बनना है, अच्छी जगह पे जाके प्रोडक्ट मैनेजर बनना है जहां कुछ सीख सको, जहां अपने जीवन में आगे एस्पायर कर सको, बन सको सीनियर पीएम, ग्रुप पीएम बन सको, बड़ी कंपनीज को लीड कर सको, राइट? ये चाहता हूं मैं। अगर आपको टाइटल के लिए प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो मत आओ यार, तो बहुत बहुत कोर्सेज है मार्केट में भाई। मेरे को ज्यादा जनता नहीं चाहिए, मेरे को पढ़ने वाली जनता चाहिए, मेरे को वो जनता चाहिए जो फाइट मारने के लिए रेडी है। तो अगर ये माइंडसेट है, उसके बाद ही अप्लाई करना। अगर उसके बाद आप मतलब इफ बिफोर दैट, एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट यू टू टेल यू इज अनलर्न। सब कुछ भूल के आओ कि क्या करना होता है, क्या सीखा है। मैं शुरू से शुरू करूंगा, जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल ऐसी चीजों से शुरू करूंगा विच विल बी लाइक कंप्लीटली न्यू एंड कंप्लीटली फ्रॉम बॉटम अप, राइट? तो आपको कुछ नहीं सीखना, मेरे YouTube वीडियोस कुछ देख लेना, थोड़े बहुत YouTube वीडियोस, ताकि आपको सेंस आ जाए कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, मैं पढ़ाता कैसा हूँ। दैट्स इट। एंड आई विल कीप द लेक्चर्स इन इंग्लिश इफ पीपल आर देयर हु कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स इन हिंदी। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर in English only. They flip to Hindi in some between, but it's easy to understand. I think there were a lot of South Indians also in the cohort. ठीक है, fair enough. ठीक है जनता, what I would want, guys please screen share बंद कर दो। अब मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप एक एक करके हैंड रेज करो, एक एक करके, everybody start raising hands, और मैं एक एक करके I will either tell people to ask questions or other people have questions. ठीक है, तो let me quickly start with Mohit. Mohit, go for it. हाय श्रवण भैया, मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, मैं 2 साल से आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस day 1. Luckily I came across you on LinkedIn and it is just fabulous. Like, I don't have words to put it. I was waiting for your cohort to begin, so I have already filled in the form. Now there are 2 things that I want to ask you very specifically. Number 1 is I am already doing a course from somewhere, but I am very sure कि मेरे को आपसे पढ़ना ही है। मैंने फॉर्म भर दिया है, तो अगर if I get, firstly what will be the criteria for you to select candidate? That is my first question. And secondly, if I get through the course, so मेरा सैटरडे संडे इवनिंग को क्लास रहता है, so वो टाइमिंग का फाइट तो मैं मार लूंगा। आई मीन उसका मेरे को स्ट्रेस नहीं है। आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई विल वर्क हार्ड। तो वो मुझे खाली आपका टाइमिंग वगैरह सेट करना पड़ेगा, आपका कैसा है, तो वो हमको जस्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। दैट्स इट। ठीक है मोहित, तो मैं दोनों क्वेश्चन आंसर करता हूँ। पहला तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आपके आंसर है यार, आप कितनी ऑनेस्टी से आंसर कर। देखो मैंने पहले भी बच्चे क्यों इस तरह शॉर्टलिस्ट किए थे। मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट जहां होती है ना, वो छोटे छोटे नोट्स में होती है कि आप क्या लिख रहे हो, आप किस लिए लिख रहे हो, आप किस तरीके अगर आप उस फॉर्म को जिसमें मैंने लिखा है कि इट इज एन ऑथेंटिक आंसर्स आई वांट, इफ यू राइट अ वेरी जेनेरिक आंसर दैट I love you or I find your videos very nice, right? It doesn't mean anything to me. It doesn't mean anything, right? So I want to understand how deeply have you thought about what it means. You are giving enough respect to the fact that I have built this form with a certain mindset, right? क्योंकि मैं नहीं हूँ यार ऐसा बंदा कि मेरे को 500 बच्चे चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे 80 ही ऐसे लोग चाहिए जो 80 के 80 तोड़ू बन जाए और तोड़ू बन के जीवन बचाएं। ये बच्चे क्यों बात कर रहे हैं, मैंने इनको पैसे नहीं दिए यार, ये खुद बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग मोहित, यार मुझे लगता है फाइट हो, बहुत डेंस है हमारा कोर्स। मतलब लाइक मुझे नहीं पता तू दोनों जगह जस्टिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत फाइट होगी। अगर तेरे में इतनी शिद्दत है
हाँ तो हाँ, वो वो कर सकता है। तो लेकिन ये तेरे पे कंटेंशन है, मैं अब फिर तेरे पे बोल रहा हूँ ये चीज। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, it is going to be problematic for you, because the cohort is running very fast. We are covering deep concepts. You need to spend consistent. मतलब इन लोगों ने, मैंने 10-12 घंटे बोले थे, ये 20-20, 30-30 घंटा काम किए हैं पर वीक बोल रहा हूँ मैं, पर वीक। ठीक है, तो अगर उतनी फाइट मारने की इच्छा है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ही आगे बढ़ना। बट उसके अदर देन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा जहां पे आपने किया हुआ एनरोल वहीं पे जस्टिस कर लो। भैया आई वांट टू ऐड वन, वो टाइम वाले के लिए मोहित, हमें केस स्टडी मिली थी। इट वाज फॉर एन एंटरटेनमेंट ऐप, ओटीटी ऐप। एक दिन आई वाज ऑन अ कॉल फ्रॉम 12 PM to 12 AM, सो दैट इज द टाइम वी स्पेंड ऑन उसमें। मतलब वो सैटरडे संडे तो आप भूल जाओ कि आप कहीं जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट 12 hours पे stretch constantly I was on that call. I took what 10 minutes off just to have a tea break, कि मैं 10 मिनट में आती हूँ बस, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। इतनी dense case studies होती हैं that आपका दिमाग तो खुलेगा ही खुलेगा, you will have to work very hard. No, that's not okay. That's okay. Just to counter that, that is my prerogative, right? I mean, that's so I know what I can do and what. बट इसके अंदर एक और कंटेंशन है मोहित, मैं ये भी इंश्योर करता हूँ। देखो, आपके सब ग्रुप में आपका मोटिवेशन लूज हुआ ना, आपके साथ 2 लोगों का लूज हो जाता है। मैं वो नहीं करना चाहता। देखो, इसलिए तभी आओ जब आप शिद्दत, क्योंकि मैं बहुत इन चीजों में बहुत क्रिटिकल हूँ। 1-2 हफ्ते मिस हुए, मैं निकाल दूंगा कोहर्ट से, मैं बोलूंगा पैसे वापस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। बट मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर। मेक सेंस? आगे चलते हैं। हिमांशु, योर क्वेश्चन, गो फॉर इट। हाँ भैया, मेरे को वही पूछना था, जैसे सोनाली शेयर शी वाज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, तो मतलब ये प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स वाले रोल्स के लिए, मतलब इफ वी गेट इनटू इट, तो विच जॉब रोल्स वुड बी गेटिंग इनटू? मतलब प्रोडक्ट एनालिस्ट मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, all kind of job roles will be covered. I'll tell you, because product thinking होती क्या है? It is about to take better decision making. So any role that you prepare for, it will equip you. But particularly product management role के लिए, जो कि एक thinking role होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा valuable role होता है in term, because product manager करता क्या है? It gives insight to the business कि आपको next क्या बनाना है। आपकी सारी टीम्स आपके डिसीजन पे काम कर रही है, क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग भी आप पे काम कर रही है, डिजाइन भी आप पे काम कर रही है। तो आपको ये जनरल थॉट प्रोसेस कैसे ग्रो करनी है उसमें इंप्रूव करेगा। सो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरी डैम पर्सन, बट एक्सप्लिसिटली फॉर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट रोल्स एंड टेक्निकल प्रोडक्ट रोल्स एंड साइमल्टेनियसली टेक रोल्स इफ यू आर लुकिंग इनटू। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है भैया। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स मूव टू क्या कहते हैं, नवत, गो फॉर इट। Yes, hi Shravan bhaiya. So मुझे पूछना था, so I'm having 6+ years of experience as of now. So and I've worked with like a different, like what I can say, I've been part of customer support team. Then I've been part of the Alexa product team when I was in Amazon, and now I'm working as a software engineer with Salesforce technology. So मुझे ये पूछना था कि अब अभी जब ट्रांजिशन होगा, अभी स्विच करूंगा किसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में, सो विल इट बी लाइक आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक फ्रॉम APM PM एंड लाइक नहीं, मैं इसका भी आपको आंसर देता हूँ। दोनों चीजों पे इस पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो जनता के लिए मैं रिटरेट करता हूँ नवत का क्वेश्चन क्या है, कि काफी सारे एक्सपीरियंस लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आई हैव 10 years of experience, so will I start as an APM because I don't have product management experience, right? The answer to that question is yes and no. ठीक है, what I'll tell you what is yes and no. अगर आप 7 हफ्ते में इतनी प्रोडक्ट थिंकिंग डेवलप कर पाए कि आप सीजनड डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, दैट्स सेकंड। और सेकंड, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को ऐसे दिखा पाए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यू हैव वर्कड ऑन एन API एंड यू हैव API मैनिफेस्टेशन, किसी चीज पे आपने काम किया और आप ये प्रूव कर सकते हो कि उसने 10 मिलियन लोगों को हेल्प किया, so then they can even give you a PM role or an SPM role depending on the kind of, but maybe it might be specific to your industry, so you can actually get, I have seen people जिनके 10-10 12-12 साल के एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्टली VP भी बने क्योंकि उन्होंने सेल्स में बहुत देर तक काम किया। और बाकी सारे रोल्स ना अपने आप ही दे बिकम like a salesperson can become a very good product manager because वो डे इन डे आउट कस्टमर से बात कर रहा है। अगर आपकी थिंकिंग नहीं है उतनी, अगर आपने ज्यादातर एग्जीक्यूशन रोल्स पे काम किया है, तब आपके लिए दिक्कत होगी, तब आपको सोचना पड़ेगा। तब इसीलिए ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे शोकेस, जैसे अभी ने बात की, हाउ आर यू शोकेसिंग योर एक्सपीरियंस? इफ यू कैन शोकेस इट इन द राइट वे, यू कैन इवन गो इनटू एन SPM रोल वेयर यू कैन essentially get the same salary, but you have to justify that mindset. That is very important. ठीक है, awesome, makes sense. Let's move forward. अब मैं आता हूँ, ठीक है, नादिया, over to you
please. Thank you so much, Vince, for conducting this session. My question is like there are people from different tech backgrounds, like software engineer, QA. So how do you all apply the product management principles at your current role so that it helps you enhance your product thinking mindset and it becomes sort of like a muscle memory? Somebody wants to answer this. I don't want to answer this. Can anyone from the cohort please answer this question? Can I answer this, Bhaiya? Yeah, Suraj, go for it. Go for it. Yeah. So, Nalia, can you just expand your question a bit? Can you tell me a bit more? Like supposing even before you break into product management or like become a product manager in your career, like right now if you're working as a developer, supposing, so how do you like apply the product management principles in your current role so that it shapes your entire mindset and like you become a better product manager later on? Sure. Okay. So see, the core point is that when you learn how to take better decisions, analyze the what, why, how of those decisions, and then think about all the constraints and things that could be done better. No matter which role you're in, even if it's a very simple role like a CRM role or a customer support role, your depth of thinking is very much improved there, right? So it does not matter what role you're doing or whatever it is that you're doing, you're going to build that strength over there. And eventually, going ahead, it will help you become a better engineering manager in your case, or a product manager transition in your case, much, much better. So what we try to do, or what our entire mindset is, to get you into the depth of thinking, push yourself, and then figure out the what, why, how sort of side of it, right? Which is sort of lacking in a lot of other places, and usually people don't think about the depth. So pushing you to think about it, that is the whole point that I want to put forward. I will just add one more point, Nadia. Like मैं श्रवण भाई मैं कुछ ऐड करूं इसमें? हाँ, आप प्लीज ऐड करना. मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, फिर आप आराम से ऐड करना. देखो नादिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. नादिया, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश, ऑनेस्टली. आई स्विच टू हिंदी. यू कंफर्टेबल ना? देखो, मान लो आप मार्केटिंग में हो, ठीक है, और आपको एक नया कैंपेन डिजाइन करना है. अब नया कैंपेन डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यूजर को समझना है. यू हैव टू नो व्हाट टू राइट सो दैट द यूजर अंडरस्टैंड्स दैट, राइट? सो हाउ डू यू गेट दैट माइंडसेट कि आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर को क्या पसंद है? शुड यू राइट बाय नाउ वर्सेस एनरोल नाउ? डिफरेंस है ना, दोनों का माइंडसेट अलग है. एनरोल का मतलब होता है यू आर गेटिंग इनटू समथिंग, राइट, एंड यू आर गेटिंग अ सर्विस, राइट. बाय नाउ का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हो, और ये दोनों में बहुत अलग इंटेंट है. एनरोल में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, मैं कहीं कुछ सीखने के लिए जा रही हूँ. तो ये जब आप प्रोडक्ट थिंकिंग सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने मार्केटिंग के डिसीजंस भी बेटर लोगे, कि आपको ये पता रहेगा कि यार मुझे पेज पे डालना क्या है, व्हाट डू आई हैव टू शो, व्हाई डिड आई डू दिस कॉल एंड लेट दीस पीपल स्पीक, बिकॉज़ आई नेवर वांटेड माय सेल्फ टू स्पीक अबाउट द एक्सपीरियंस. दैट इज व्हाई इट बिल्ड्स ट्रस्ट, कि अब आपको यकीन होगा कि यार ये बच्चे भी अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, तो आप गलत इंसान के साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. तो दिस इज द माइंड. अब ये थॉट प्रोसेस मेरे में क्यों आया? Why did I even do this session in the first place? I could have very well done my session and brought you in and told you whatever I could have told you. Difference आ गया ना, यहाँ पे ट्रस्ट का कोफिशिएंट बिल्ड हुआ ना. यही एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ. यही छोटी छोटी चीजें लेके ना आप, you can convince your लीडरशिप to take better decisions and you can become a better person. And this is the way you will. And I would love for you, Saurabh bhai, if you want to add something, go for it. Yeah, exactly. बहुत कुछ similar. Like me being a developer, first 1.5 years I spent in front end engineering, and now I'm little bit in the back end full stack developer, और थोड़ा बहुत product manager के side में भी बढ़ रहा हूँ. तो what happened is, like being a front end engineer, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा and expect someone to help me in product management, that won't happen. So what I did was I sat with designers in our team, क्योंकि they have the user experience part. Wherever they are putting certain button, जैसे श्रवण भाई ने बोला enroll now या buy now है, they have that context because they are speaking with the customer, because they have to design what the customer says. So पहले तो उनके साथ बैठा, understand what the user experience looks like. Then they told they are getting feedback from customers. Then customer interview में customer interview में बैठा, client से समझा कि क्या होता है. That for that you will have to ask your manager कि can I be there in the call at least. I won't speak anything. I will just listen to what the conversation is happening, and then start your input slowly. And then you speak with the manager itself ki how their day is looking like, if they need any documentation help. So doing like that, I have started to indulge in more like product management work, even without them knowing that I am doing that work.
So you will get your own confidence, you will be able to document a lot of things, and then they'll realize, and when you showcase them कि मैंने ऐसे सब ये बनाया है, this is how I'm documenting your stuff, this is how I'm maintaining the records for whole project, I'm understanding the user interviews, everything, that time you will only feel that कि okay, you are contributing more than what you're expected to be, and then you'll feel enough confidence कि कई बार अप्लाई करना है कंपनी में, तुम्हें प्रमोशन चाहिए और एनीथिंग. मेक सेंस, ऑसम. ठीक है, मैं आगे जाता हूँ. अपराजया, वेरी वेरी कूल नेम मैम. जमदग्नि परशुराम जी के फादर का नाम था, बाय द वे, अगर आपको पता हो तो. तो दैट्स इट. बट अपराजया, प्लीज गो फॉर इट इफ यू हैव अ क्वेश्चन. या हेलो हेलो. ओके, फेयर इनफ, आगे मूव करते हैं. ठीक है. हाँ संजू, आपका कोई सवाल है? मोहित, आई थिंक योर क्वेश्चन इज डन. आई विल, क्या कहते हैं, या अपराजया, गो फॉर इट. या Apramaya, sorry. I'm really sorry. I'm pronouncing your name wrong. It's really hard for me to kind of put across. But Apramaya, please go for it. Yeah. Acha, you sent the question, kya? Yes, we can hear. We can't hear you. Yeah, you're on mute. I will unmute you. Give me a second. Yeah. Now, can you try? Yeah. Hello. He has sent his question in the chat, Shravan. Hi, Shravan Bhaiya, how does one transition into product management from a tech sales development or QA engineering background? ठीक है, तो I think, does anyone want to answer this coming from a sales background or from that kind of a background? Tahsin bhai, anyone who wishes to answer this question for Apramaya? Yeah. Question ये है, I'll repeat the question. How can one transition, क्या कहते हैं, from product management from a tech sales development or QA engineering background, किसी भी background से, आप tech से हो, QA से, तो आप कैसे transition करोगे? वही सवाल वो पूछ रहे हैं. ठीक है. Andrea, can I answer? Yes. Hi, Yes, Apramaya. So, first thing, background doesn't matter. आपको वो दिखाना कैसे है, वो depends, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके solutions में आपने जो काम किया वो users को कैसे affect किया. Basically, in product, everything is about the user, the customer that we are working for. So, आपने जो काम किया, how did it affect the other person, the user that is using that product? अगर आप वो convey कर सकते हो, it's very easy to transition to product management. बाकी concepts कैसे clear होंगे? You join the cohort. If you get into cohort में नहीं भी जाते हो तो भैया नहीं, इतने YouTube videos डाले हैं that you can learn the whole thing from that from the YouTube videos, and you learn कि आप अपने experience को product management के experience में कैसे convert कर सकते हो. I hope that helps. Makes sense. Awesome. ठीक है. अब next question, I will take 2 more questions. Sanju, you have a question. You have asked a question, but you still want to ask a question. Go for it. No question नहीं है, सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ. पिछली बार कोहोर्ट में मुझे आया था मेल, बट जब तक एनरोल करने गया तब तक शायद स्लॉट बुक हुआ था और 404 एरर आया था. मैंने आपको मैसेज भी किया था फॉर दैट, तो आपने बोला था सिर्फ 40 लोग हैं स्लॉट में. सो नेक्स्ट टाइम, सो आई थिंक दिस टाइम इज सिमिलर टू, वैसे ही कुछ आप करने वाले हैं क्या? बिल्कुल वैसा ही है, बट इस बार काउंट मैंने थोड़ी बढ़ा रखी है. तो थोड़ी बढ़ा रखी है क्योंकि इस बार अब हमारे पास कम्युनिटी है, वो सारे लोग हैं. क्योंकि एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ संजू, जो सारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए. अब इस कम्युनिटी में ये सारे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट बना है, तो अब खाली श्रवण की जरूरत नहीं है आपको. अब ये सब लोग भी हैं जो आपको हर मोमेंट पे हेल्प करेंगे. तो ये और पावरफुल बन गई है अब ये कम्युनिटी. अब ये छोटी नहीं रही. अब these people have the mindset, they will never let you feel down, they are always there, right? But एक ही चीज, आपको अच्छे से रहना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है, बदतमीजी नहीं करनी है. हम ये सारी चीजें वो नहीं करते हैं. we don't tolerate that. You have to respect everyone, you have to put effort and you have to do. हाँ विनय, आपका क्या सवाल है यार, एक बार पूछ ही लो. You have been pinging. What is your question? Can you ask the question? I don't want you to text the question. If you can ask the question. Yeah. हेलो. हाँ हेलो. हाँ पूछो, क्या सवाल आप? सर ये कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहेगा और मतलब कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा इन अ डे लाइफ? यार मतलब आप जनरल पीएम लाइफ की बात कर रहे हो या कोहॉर्ट में पूछ रहे हो? मतलब दोनों का कोहॉर्ट का तो देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है. जनरल की बात कर रहा हूँ, इन जनरल जॉब्स. देखो यार, अच्छे रोल्स, देखो पीएम्स बिल्डर्स होते हैं मेरे भाई. बिल्डर्स को ना टाइम लगता है. मतलब इट यू कैन नॉट बिल्ड अ $1 billion कंपनी इन अ डे. सो यू विल हैव टू, इफ यू जेन्युइनली लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन ओनली कम. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को मेरी
पर्सनल लाइफ अलग है, मेरी प्राइवेट लाइफ अलग है, और क्योंकि मैं वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, मैं वर्क लाइफ हार्मनी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ. जैसे आई लव टीचिंग, आई कैन टीच द एंटायर डे because it's about doing the things that you love. That's why it is critical for you to get into a great role, right, where you enjoy being in that role and you don't feel like that I have to go to office next day और मेरे को वहां पे दिक्कत है. अगर आपको मजा नहीं आता तभी आप वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते हो, बोलते हो यार कि अरे यार मेरे को कुछ काम रैंडम करना पड़ता है और घर आ जाऊंगा जल्दी. लेकिन अगर आप इतना, आज आपको क्यों लगता है ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं 1.5 घंटा हो गया, रीजन है क्योंकि इनके मन में वैसा स्वभाव है. तो अगर आपके मन में ये थॉट है कि यार आई रियली लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई वांट टू सॉल्व समथिंग लार्जर देन माई सेल्फ, बिल्ड अ प्रोडक्ट विच लॉट ऑफ पीपल कैन यूज एंड आई फील इट विल गिव मी वेल्थ, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, राइट, देन ओनली कम. अगर आपको ये लगता है नहीं यार मेरे को इससे एक पीएम रोल में ट्रांजिशन करना है और उसके बाद मैं चिल करना चाहता हूँ जीवन में 10 घंटे यहाँ पे तो मत आओ यार, मत करो. नॉट फॉर दोज पीपल जो जिनके लिए ये एक it's a stepping platform to get into a role. It's a stepping platform of getting into a mindset, right? ताकि आप जीवन में खाली इस कोर्स के बाद देखो, इस कोर्स में मैं आपको बेस्ट ऐप्ट बताता हूँ, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू टूल्स, राइट, टू इफेक्टिवली डू बेटर इन लाइफ. If you have those tools, even if you want to become from a PM to a senior PM to a group PM, you will always have those tools, and those tools are permanent, right? So I am making you equipped, right? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Let's quickly move towards. हाँ लक्ष्य, go for it. Yes. Hi, Shravan. You can choose to not answer this question if because this would be slightly like this is my situation where I've come from, and I can definitely reach out to you on some other platform if you want. Yeah. So basically, in the last 4 years, 4.5 years of my career, I've switched like multiple domains. I have been a developer, then I have been a sales guy, I have been into business operations, and currently I'm working as a technical delivery manager for a US-based startup. So now, I mean, I remember you mentioned this sometime back only to one of the fellow person here that for a salesperson, it's always easier to get into product management. But for some weird reason, I've completely removed my sales experience from my resume. I think it makes my resume a little, it takes it on a back foot. So that's the reason. Sorry, yeah, please. Makes sense. I'm listening. Go for it. Yeah, so that's why I mean, I don't understand. Like, should I add it back because I've been applying for product roles here and there. हाँ जी. मैं आपको बताता हूँ. देखो, आपका सवाल मैंने सुन लिया, बहुत कॉमन सवाल है. ठीक है, देखो मैंने कहा सेल्स वालों के लिए अच्छा है, लेकिन बन कोई भी सकता है, ये पहली चीज. ठीक है, तो ये इसको क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है, कि मैंने कहा इट इज गुड फॉर देम टू ट्रांजिशन इनटू कंज्यूमर रोल, क्योंकि वो कस्टमर से बात करते हैं. ठीक है, तो वो आसान है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि इतनी सारी जनता तो टेक वाली जनता है यहाँ पे, वो तो सेल्स रोल है ही नहीं उनके पास, राइट. सो द फंडामेंटल थिंग इज कि आपकी थिंकिंग कैसी है. अगर आप अपने किसी भी एक्सपीरियंस को, क्योंकि रेज्यूमे जैसे लोग बनाते हैं ना, बहुत गलत बनाते हैं. मतलब अगर आप ये लिख रहे हो कि मैंने एक एपीआई को अच्छा किया, उससे हुआ क्या यूजर के लिए, वो तो आप लिख ही नहीं रहे रेज्यूमे में. आप लिख रहे हो मैंने ये सर्विस यूज की. मैंने 90% रेज्यूमे कैसे देखे कि लिखता है बंदा मेरे को एनजीनेक्स आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है. उससे हुआ क्या भाई जीवन में, यूजर के जीवन में, ये तो बताओ ना. तो अगर वही नहीं बताओगे तो फिर बंदा आपको प्रोडक्ट मैनेजर हायर क्यों करेगा. अगर आपको बिल्डर ही बनना है, कोडर बनना है, तो आपके लिए सेंस बनता है कि आप रिएक्ट लिखोगे कि मुझे रिएक्ट का ये फ्रेमवर्क आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है. तो पहली चीज ऐसा नहीं है कि अगर आपका सेल्स एक्सपीरियंस आपको लगता है, फिर भी अगर आप गो थ्रू कर जाते हो तो हम उस एक्सपीरियंस के अंदर जाएंगे. हम समझेंगे इसको हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लाइट से कैसे दिखा सकते हैं. How can we showcase that across? Like, for example, if you say that I acted as a product lead and I essentially grew a particular vertical from 50 lakh rupees to 1 crore rupees, right? Adding 500 more customers with an NPS of 80 or 90, right? Now that becomes a legit product management experience. राइट. तो ये वाला फंडा है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हटाना है या नहीं हटाना, वो तो देख के ही पता चलेगा. लेकिन मैं दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूँ. मैं खुद 8 साल में 7 कंपनियां बदला हूं. ये आपको पता है. ये अगर मेरी प्रोफाइल आपने देखी होगी तो मैं 8 साल में 7 कंपनियां बदला हूं. ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिस भी लेवल की डेप्थ मेरे में बिल्ड हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि मैंने वेरियस इंडस्ट्रीज में काम किया. मेरे को समझ में आया अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, और अंत में फिर समझ में आया कि प्रिंसिपल्स कॉमन है, वो उन्हीं को अप्लाई करना आना चाहिए. लेकिन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना सीखना बहुत हार्ड होता है. मतलब इट इज नॉट इजी. अब ये इवेंट प्लान करना इस तरह, ये पता है हमने इवेंट कब सोचा था? हमने कल प्लान किया था ये इवेंट. यस्टरडे वी प्लान्ड इट, एंड अभी आप देखो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे हो गए, 90 लोग कॉल में. तो यानी कि कुछ तो बढ़िया तरीके. इसी को, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. This is how it's designed. How these people came. Why did these people from different backgrounds come?
राइट? तो ये वाली चीज है, ठीक है? तो लक्ष्य, आई होप दैट डज जस्टिस टू इट. आगे चलते हैं हम. जनता, आई विल टेक 5 more minutes. I think there are few more questions, but in the interest of time I need to switch off the session. मैं एक एक करके उठाऊंगा. यश, what's your question? यश नलगुंड. नलगुणवार सर, नलगुणवार. Sorry भाई, I am very bad with names. Apologize. सरनेम का प्रॉब्लम है. सो सर, मेरा छोटा क्वेश्चन है, शायद आपके लिए या मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है. कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट इतना बड़ा अपने आप में टॉपिक है कि आई डोंट नो विच स्ट्रीम शुड आई चूज. प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, उसमें फिर प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट है. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि एंड ऑफ 7 week, राइट, ऑन द लास्ट डे, वुड आई हैव द क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है? डेफिनेटली होगी, और मैं इसका रीजन भी बताता हूँ, ठीक है? देखो यार यश, एक और चीज, जीवन में आपको कभी ये पता नहीं चलता कि मुझे करना क्या है आपको, लेकिन ये हमेशा जरूर पता चलता है मुझे क्या नहीं करना है. क्या नहीं करना है, ये क्लियर हो जाता है. तो आपको मैं इस पूरे इंटेंट में ना आपको डिस्कवरी सिखाऊंगा कि भाई डिस्कवरी कैसे होती है, कि जीवन में कोई भी अच्छा डिसीजन लेना है तो आप हमेशा एक्सपेरिमेंट. जैसे मैं 7 इंडस्ट्रीज क्यों जंप किया, क्योंकि मुझे जानना था कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है, और इवेंचुअली मेरे को आफ्टर 7-8 years ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज्ड आई एम एन एजुकेटर. मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैंने अपना करियर उसी तरह फिगर आउट किया. आपके साथ भी यही होगा. आप क्या करोगे, 6 महीने तक एक रोल के अंदर मूव करोगे, 6 महीने तक आप 100% फाइट मारोगे, लेकिन 6 महीने का कट ऑफ रखोगे. बोलोगे इन 6 महीने में अगर मुझे उतना मजा आया तो इट्स लाइक जिम. आप पहले 15 दिन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 2 महीने जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना. 2 महीने में अगर आपकी बॉडी में चेंज आ गया होगा तो आप अपने आप कंटिन्यू करोगे. अगर आप में नहीं आया होगा तो आप किसी और रोल, और इसी तरह आप डिस्कवरी कर करके अपने रोल पे आते हो. आप किसी भी बड़े लीडर से ये सवाल पूछोगे, वो आपको यही जवाब देगा कि भाई मुझे नहीं पता था. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन से चीजों को कट करना शुरू किया कि अरे ये मैंने किया, ये मुझे पक्का अच्छा नहीं लगा, तो मैं सेल्स तो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा. और इवेंचुअली मैं एक पॉइंट पे आ गया जहां मुझे समझ में आया कि मार्केटिंग. तो आपके 7 हफ्ते में आपको शायद ये ना पता हो कि मुझे प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर बनना है, बट ये जरूर पता है कि अब मेरे को क्या बनना है, उसके टूल्स क्या है और मैं कैसे फिगर आउट करूंगा. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं विशाल से पूछता हूँ. विशाल एंड जयदीप, मैं आपके पास आऊंगा एंड देन वी विल कवर द कॉल. विशाल, गो फॉर इट. ओके, हाय गाइस, हाय सर. सो बेसिकली मैं पिछले लास्ट एक साल से एज एपीएम वर्क कर रहा हूँ, एंड मैंने मल्टीपल चीज़ों पे काम किया, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यूजर रिसर्च एंड यूजर इंटरव्यूज. बट जो भी मैंने सीखा वो इंटरनेट से सीखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करा. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कभी ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि जिस प्रोसेस को मैं यूज कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्या वो सबसे बेस्ट है या फिर इसको भी और इम्प्रूव करा जा सकता है, और अगर करा जा सकता है तो वो क्या तरीका है. और वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब पे हजारों तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रैक्टिकल नहीं है और कुछ प्रैक्टिकल है तो समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करना है. तो ये सिचुएशन को क्या सॉल्व कर पाऊंगा मैं कोहॉर्ट से? बहुत अच्छा सवाल है विशाल. देखो, किसी भी चीज की प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए फाइट मारनी पड़ती है. जैसे आप मुझसे पूछोगे कि यार आप जैसे बच्चे मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं, भैया आपको डेप्थ कैसे बिल्ड हुई आपके मन में, कि आप किसी भी टॉपिक पे कैसे बात कर लेते हो, है ना, और डीपली बात कर लेते हो, कि आप बोलते हो सिस्टम डिजाइन की बात करनी है, आप टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर हो भी नहीं तो आप सिस्टम डिजाइन के बारे में कैसे बात कर रहे हो. ये होता है एटीट्यूड का तरीका, कि अगर आपके मन में, इट्स लाइक व्हेन इलॉन मस्क वाज आस्क्ड कि हाउ डिड यू बिल्ड अ रॉकेट कंपनी, ही सेड आई रीड. दैट्स व्हाट ही सेड आई रीड. तो कई बार क्या होता है, अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी चीज मेथोडिकल है या नहीं है, उसको आप विद द प्योरेस्ट इंटेंट करो और अपने लिए कट ऑफ रखो. बोलो कि मैं इस चीज को, नई चीज को ट्राई कर रहा हूं, इस अगले 30 दिन के लिए मैं जज नहीं करूंगा, मैं जो लिखा है वो करूंगा, लेकिन 30 दिन के बाद मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करूंगा कि यार कि जो चीज मैंने सीखी क्या वो एक्चुअली मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं. अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप उसे छोड़ दोगे, फिर आप दूसरी चीज पकड़ोगे, और इसी तरह डिस्कवरी करते करते आपको अंत में समझ में आएगा कि 3-4 ही बढ़िया चीजें हैं जिनको आपको जीवन भर करते रहना है, कि डिस्कवरी बेटर करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम स्पेस को बेटर समझना है. ये सारी चीजें आपको 3-4 बढ़िया तरीके से करनी पड़ेंगी. इन चीजों को अगर आपने बढ़िया तरीके से किया तो आपको अपने आप प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी. जैसे मैंने सिस्टम थिंकिंग पढ़ी तो मैंने सिस्टम डिजाइन भी बढ़ा दिया, जबकि मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट मैनेजर, आई वाज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट मैनेजर, आई एम नॉट अ टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, राइट. मैंने सिस्टम थिंकिंग, और वो क्यों समझ में आया, क्योंकि मैं आई कुड कनेक्ट द डॉट्स. क्योंकि मैं हर बार जो भी चीज सीखता हूं तभी मैं बोलता हूं विद्या इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है यार. और इसका एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप फाइट मारते रहो. खाली कंटेंट यहां पे होना डज नॉट मेक यू एनीथिंग. कंटेंट यहां होना चाहिए दिल में, कि आपको समझ में आना चाहिए. कि इसीलिए मैं आपको चीजें वही बताऊंगा कि पीआरडी वैसे ही लिखनी है, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि आप उसको इंटरनलाइज कैसे करोगे, कि आपको फिर जीवन में कोई नया ही सवाल आ जाए, अगर आपको पीआरडी लिखनी है तो कैसे लिखोगे. ठीक है विशाल, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. मेक सेंस? आगे चलते. और लास्ट क्वेश्चन जयदीप,
Go for it. Yeah. Thanks, Raman. I have a question that you already answered, that you have come across different industries and then you are you find out that you are an educator. So right now my condition is that I have also come across multiple industries, but the only thing is that I am mostly an operational guy who is into operational or functional work, not into any product kind of work. So I deeply want to be into a product management domain, but is it feasible for someone like me? Absolutely यार, मैंने बोला ना जॉयदीप, इसका आंसर बहुत सिंपल है. आपको फाइट मारनी है ब्रो, आपको फाइट मारनी है. आप फाइट मारोगे, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको अभी भी बता रहा हूं. लेकिन इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी फाइट इंपॉर्टेंट है. क्या आप 7 हफ्ते मेरे को समर्पित कर सकते हो? आप किसी भी बैकग्राउंड से, ऑपरेशंस हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी. आई हैव स्टूडेंट्स जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो मतलब टियर 3 कॉलेज से आर्ट्स पढ़े हैं और आज प्रोडक्ट मैनेजर. तो आपको फाइट मारनी पड़ेगी. इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको आना है तो शिद्दत से आओ, वरना मत आओ. वरना बहुत जगह है, बहुत सारी जगहें हैं, आप जा सकते हो, खुशी खुशी चले जाओ, कोई फाइट नहीं, कोई फाइट नहीं जीवन. लेकिन इन 7 हफ्तों में आप खत्म हो जाओ. मतलब यू विल फॉरगेट द पर्सन दैट यू आर. दैट आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर. मेक सेंस? ठीक है. अब मैं एक लास्ट, आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन. वेंकटा को मैं क्वेश्चन लेता हूं. वीजी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? एक बार बता दो, एक बार इटरेट कर दो, क्या आपका सवाल क्या है? Anyways, ठीक है. वेंकटा, go for it. Yeah, Viji, go for it. No, Sonali. I guess his mic is not working. He asked कि product analyst APM PM में क्या difference है? यार ये भी मैंने कवर किया हुआ है विजी. आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ, मैंने काफी अच्छे से इसको कवर किया है. There is a legit lecture on that. आप वो कर लो. बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ. आपका ambiguity of the role ग्रो करता है. जैसे आप एक प्रोडक्ट एनालिस्ट हो तो आपको डेटा देखना होगा. डेटा से देख के आपको कुछ इनसाइट निकालनी पड़ेगी. एपीएम बनोगे तो आपको एक फीचर दे दिया जाएगा कि फीचर कैसे करना है, फीचर को कैसे बनाना है, लेकिन फीचर स्पेसिफिक होगा. पीएम होगे तो आपको बोलेंगे प्रोडक्ट कौन सा यूज करना चाहिए. एसपीएम होगा कि वर्टिकल कौन सा होना चाहिए. तो प्रॉब्लम और एम्बिग्यूअस होती जाती है. दैट इज व्हाट. और एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम का ये मतलब होता है लार्जर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जैसे सीपीओ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, अब हमें कौन से मार्केट में जाना चाहिए. तो इट इज हाउ इट वर्क्स. बट आपके एपीएम पीएम रोल्स में आपको फीचर सेट्स बनाने के लिए बोला जाएगा कि फीचर कैसे बनाने हैं. लेकिन फीचर बनाना उतनी बड़ी बात नहीं होती. अगेन ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है. फीचर बनाना भी बड़ी बात होती है, लेकिन इन मोस्ट केसेस, राइट, इट इज स्लाइटली मोर इजी टू डू. When you become an SPM, people will ask you what is the strategy of penetrating this market, right? That is how it's going to work. Anyways, ठीक है. Last question, Venkata, go for it. Yes. Hi Shaban, thank you so much for your time for giving this late evening. So my question is like I was running a small company back in UK. So now after pandemic has gone down. So my question is like at this stage, what kind of role in PM would really suits to me? Yeah, it really depends on your company. What was your? Can I ask you what were you doing? What was your business? Yeah, we were the third-party sales team for the British Telecom in UK. Fair enough. So I think a lot of roles, even the sales consumer roles, would be open for you. I think networking PM roles would be very good for you because you work with British Telecom. I think मैं आपको वही बताना चाहता हूँ Venkata. It is more about the mindset, because if you know the principles, you can apply it to any background. I've seen people transition from fintech to health tech, from e-commerce to completely B2B enterprise SaaS, because the principles are very same. It's about how you do entrepreneurship. Eventually, the PM role is just like a shadow of entrepreneurship, just with a little less risk. बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आपको एचआर भी देखना है, आपको सेल भी देखना है, आपको मार्केटिंग भी देखना है. पीएम्स में आपको शायद थोड़े कम लेवल पे करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डेवलप दैट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कि आप ग्राउंड से कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो. सो यू कैन बिकम एनी प्रोडक्ट मैनेजर, बट सिंस योर एक्सपीरियंस इज ऑलरेडी देयर, आई थिंक it would be from a PM lens. You will have to understand कि आपकी strengths क्या है और उस पे हम काम कर सकते हैं. Make sense? ठीक. Perfect. Thank you. Awesome. तो थैंक यू वेरी मच जनता फॉर स्टेइंग देयर. अब मैं सारी बात, अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई. आपको माइंडसेट डेवलप करना है, आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. शॉर्टलिस्टिंग के बाद द फीस ऑफ द कोहॉर्ट इज 50K and it is typically the same as in the market. I will have two different स्ट्रक्चर्स इसमें. 25,000 का पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, 25,000 का दूसरा इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. पहले 20 बच्चों के लिए मैं फर्स्ट 20 पीपल जो शॉर्टलिस्ट होंगे, जो पहले, उनके लिए मैं 40,000 में कर रहा हूँ, जिनके लिए अर्ली बर्ड है. The size of the cohort is going to be 80 to 100.
not more than that. And we will have a mentor, super mentor layer. जितने भी इस कोहॉर्ट के मेंटोर्स हैं वो सुपर मेंटोर बनेंगे जो 2 ग्रुप्स को हैंडल करेंगे और उनकी रिस्पांसिबिलिटी उन दोनों ग्रुप्स को हैंडल करना होगा. मेंटोर्स विल बी दीज पीपल बिकॉज इन्होंने ये कोहॉर्ट किया हुआ है, इनके पास वो माइंडसेट है, ये आपको डायरेक्शन दे सकते हैं. तो ये एक मेंटोर आपको असाइन कर दिया जाएगा इन अ ग्रुप ऑफ 8 एंड वी विल हैव कंसिस्टेंट असाइनमेंट्स, विल हैव गुड स्पीकर्स. स्पीकर भी उनकी अवेलेबिलिटी पे आते हैं तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कोई स्पीकर सिलिकॉन वैली से आ रहा है तो वो सुबह क्या कहते हैं 8 बजे भी लेक्चर हो सकता है. तो आपको ये देखना पड़ेगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर यू कैन नॉट डिवोट दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, प्लीज डोंट पे. आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मत करो. मेरे को वैसे लोग नहीं चाहिए जो, क्योंकि पैसा देना तो पहला स्टेप है. वो इसलिए क्योंकि आज अगर मैं आपको एक बात पूछूं और मैं इन बच्चों से सीधे सवाल पूछता हूं, जितने भी मैंने इनको पैसे दिए, आपको याद भी है कि वो पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? सच बताना. आप में से मुझे सच सच बताओ. So you will not even remember that because that is the first step. It is not the end. End है आपका इंटेंट. अगर आपका इंटेंट नहीं है तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए. मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए. आप कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं खुशी खुशी बोलूंगा मेरे YouTube चैनल से भी बहुत जनता पढ़ी है. तो मैं इसको एरोगेंस में नहीं बोल रहा, बट मैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कोहॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इतनी फाइट मारते हैं. हम जेन्युइनली इंसानों को, और इसीलिए ये टेस्टिमोनियल्स आए हैं जहां पे बच्चे बोल रहे हैं उनका प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जो भी माइंडसेट आया, लेकिन जीवन में माइंडसेट बदला है. ठीक है, तो आई थिंक ये वाला सिनेरियो है और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द कॉल. आई एम सुपर हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एंड स्पेंड this much amount of time. This shows intent. If you're spending 2 hours before the cohort, then I would go and fill the form. I will again share the form with all of you. मैं एक बार सूरज या सब लोग फॉर्म डाल दो और ये रिकॉर्डिंग भी मैं YouTube पे डाल दूंगा. आप अपना डिस्कवरी करो. मैं आपको कोई भी डिसीजन प्रेशर में मत लेना यार, दिल से लेना डिसीजंस. अगर आपको लगता है कि आप किसी पे कमिट कर सकते हो तभी आना, कोई दिक्कत नहीं है. प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना. आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, आपके पास कंटेंट है, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे मेरा तब भी आपके साथ आशीर्वाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ईदर वेज, राइट. बट अगर आप आ रहे हो तो ये सोच के आना कि 7 हफ्ते के लिए सब कुछ भूलना है. सब अब 7 हफ्ते के लिए अपने आप को समर्पित करना है इस थिंकिंग माइंडसेट के लिए. 7 हफ्ते के बाद ये मेरा प्रॉमिस है, इस कोहॉर्ट का एनपीएस 90 प्लस है. 90 प्लस, और 90 प्लस तब है जब मैं 8 को प्रमोटर रेटिंग नहीं ले रहा, मैं 9 और 10 को प्रमोटर रेटिंग दे रहा हूं. ठीक है, तो 9 और 10 को, और अगर मैं 8 को भी इंक्लूड करूं जो एनपीएस की ट्रू डेफिनेशन होती है, देन द कोहॉर्ट एनपीएस इज 100. ठीक है, द कोहॉर्ट इज स्टार्टिंग इन 3rd week of February. Please put the link there, fill the application form with all your intent, with all your genuine value, and I will see to it कि आप लोग एनरोल हो. और ये कोहॉर्ट जल्दी खत्म हो जाता है यार. मैं एनरोलमेंट लिंक भेजता हूँ. लास्ट कोहॉर्ट 3 दिन में खत्म हो गया था. इनसे ही पूछ लो, इन बच्चों से. 3, और एक बार कोहॉर्ट क्लोज हो गया उसके बाद कोई पैसे देने भी आएगा मैं नहीं लूंगा. आई एम सॉरी, मैं नहीं करता वो चीज. तो मेरा इंटेंट है आप सब बच्चों का जीवन बदले और मैं उसके लिए पूरी फाइट मारूंगा. उसके बाद भी अगर मेरे से कोई कमी चुप रह जाती है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. ठीक है जनता, गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन कोहॉर्ट फोक्स, आई एम सुपर हैप्पी. प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मेरी इज्जत रखने के लिए. आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू. एंड प्लीज फ्रेंड्स, यू कैन टेल ऑल ऑफ योर अदर फ्रेंड्स हु वांट्स टू अप्लाई, शेयर द लिंक विद एज मेनी पीपल एज मच एज पॉसिबल. बट वो आपके लिए कंपटीशन बढ़ा देगा, सॉरी. तो देख लेना कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, चलो, टेक केयर गाइस. Thank you very much for being here. It was super lovely meeting all of you. Bye bye. Take care.